Hello friends, welcome on Yourpedia. I am Vishal Sharma. And friends, in last class we have discussed about combustion in SI engine, combustion in spark ignition or petrol engine. In today's class, friends, we will discuss about combustion in CI engine or combustion in diesel engine. How combustion takes place in diesel engine, what are various stages, okay, what is knocking or detonation. What is the difference between knocking and detonation? Why that abnormal combustion in SI engine is known as detonation, whereas abnormal combustion in CI engine, that is known as knocking. But although these terms are, you can say, interchangeable, knocking means abnormal combustion in petrol engine or diesel engine. So we will discuss about every detail about what is abnormal combustion and how, you can say, combustion takes place in diesel engine. Okay, so let's discuss, starts our discussion. Friends, about combustion. What is combustion, friends? Combustion is a, you can say, it is a chemical reaction in which, you can say, particles of the fuel like hydrogen and carbon, they combined with oxygen, okay, and they liberate huge amount of energy, which results in the increase in temperature and pressure of the gas. Okay, and when that pressure and temperature of the gas will increase, so we will get that particular work output by expanding that high pressure gas. Okay, so when the expansion of that high pressure gas take place, we will get some work output. So about this combustion. So what is the basic difference between the combustion in SI engine and combustion in CI engine, friends? What is very important point for you, friends? In SI engine the fuel is homogeneous. Why it is a homogeneous? Because the fuel air mixture, it comes from the carburetor. Carburetor is a device which is only used in the SI engine, and it will basically used for, you can say, mixing air and fuel mixture. Okay, so in petrol engine we are having a homogeneous mixture. Okay, but in diesel engine, friends, mixture is not homogeneous. Why? Because only the suction of air will intake. Only the suction of air will takes place in the suction stroke, and fuel will be injected in that particular high pressure air. Okay, so when the injection of the fuel takes place, it is not possible to have that particular, you can say, homogeneous mixture. Okay, so the mixture is not homogeneous. First thing very important for you, just note it down, the air fuel ratio is not homogeneous in diesel engine. Okay, second very important thing, friends, in petrol engine, like, there is a flame front will propagate, but in petrol engine the mixture is homogeneous and only one flame will propagate. Petrol engine में क्या होता है, एक ही flame बनती है, एक single flame will propagate and that will move, okay, inside the combustion chamber. Okay, but in diesel engine, friends, the mixture is heterogeneous. There is no generation of the single flame front. There will not generate any single flame, but there will be like multiple flame fronts. Why? Because there are some local zones where combustion will initiate, where combustion will begins. Okay, petrol diesel engine में क्या होगा, some of the areas you will have rich mixture, and some of the areas you will have lean mixture, very lean mixture. The air fuel ratio in diesel engine is very wide. This is the range of the air fuel mixture in case of diesel engine. Very wide range you are having, 18:1 to 80:1. You can see, but in you can say petrol engine, the mixture is almost in the range of, you can say, almost it is a approximately close to stoichiometric air fuel ratio. Maximum range will vary like 10:1 to 16.5:1, but that range is very small. 10:1 to, you can say, 16.5:1. Only in that particular range your petrol engine works. This is the engine air fuel ratio required during idling. Some maximum power 13.5:1, stoichiometric 14.8:1. Some maximum efficiency, you can say 15, 16, close to 16 for maximum efficiency. So this is the range of the air fuel ratio in petrol engine. But in diesel engine, the range is very wide range. You are having 18:1 to 80:1. Even if you will provide air fuel mixture less than this 18:1, there will be like incomplete combustion of the fuel will take place, and the mixture exhaust gases will be like more smoggy. You will observe in case of diesel engine. So the mixture air fuel ratio will start from 18:1 to 80:1. This is the particular air fuel ratio which is required at, you can say, maximum power. At maximum power, you can say this is the air fuel ratio required. And idling, during idling, in case of petrol engine, during idling very rich mixture is required. But in this case, no load condition,
like when there is no load on the diesel engine, the overall mixture, like friends, I'm talking about the overall mixture. It is not the mixture which is combustible basically. 18:1, if overall mixture is 18:1 and it is homogeneous, mixture is 18:1 and it is homogeneous, there will be no combustion will initiate in diesel engine. But the mixture overall is 18:1, but 80:1, but at some points, at some point it is very rich, at some point it is very lean, at some point it is in between rich and lean. So overall air fuel ratio is 18:1 during no load condition, but at some point it is very rich. That's why combustion will initiate at those local points where the mixture is rich. Okay, so when the combustion will initiate at those points, this point may be anywhere, like when you are injecting fuel, there will be some regions where the mixture is rich. So at those points, combustion will initiate first, and then due to the that combustion begins, the temperature pressure will increase, and due to that high pressure and temperature, even this lean mixture, which is like this is a rich mixture, initially combustion will begin at this point, but due to the combustion at these points, the temperature pressure will increase. So due to high temperature and pressure, this mixture will also become combustible, because combustible range, like if I will say mixture is combustible in the range of say 10:1 to say 30:1, in this range, suppose a particular mixture is you can say combustible. So this range depends on temperature and pressure. If you will increase the temperature or pressure of the particular fuel, air fuel mixture, so its combustible range will also increase. Okay, so this local region where the mixture is lean enough, that is also becomes combustible due to the combustion reactions which begins at, you can say, regions where the mixture is rich. Okay, so what you need to know, the mixture is not homogeneous, the mixture is heterogeneous, first thing. Second, there is a wide range of the air fuel ratio in case of the diesel engine. Okay, third, what is very important thing, mixture is heterogeneous, air fuel ratio is wide. What you need to know friends, in petrol engine में क्या होता है, देखो, वन फ्लेम फ्रंट प्रोपेगेट होती है, एक फ्लेम फ्रंट बनेगा, एंड दिस फ्लेम फ्रंट विल प्रोपेगेट, दिस फ्लेम फ्रंट विल प्रोपेगेट अप टू द एंड चार्ज, सपोज दिस इज द एंड चार्ज, ये क्या आपका एंड चार्ज, ठीक है। तो फ्लेम फ्रंट कहां तक जा रहा है, एंड चार्ज तक, व्हाई, बिकॉज the mixture is homogeneous. But इस केस में क्या है, mixture is heterogeneous, at various points combustion will begins, combustion will not begin at a single point. It is not like that you are giving sparking, the spark will be given here and flame front will propagate and this flame front will travel. It is not like that. The mixture is heterogeneous, and at various points where that particular condition will meet, the combustion will begins. ओके, सो यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट होंगे। ऐसा इंजन में क्या होता है, सिंगल फ्लेम फ्रंट होता है, बट यहाँ पे क्या होंगे, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स होंगे, ठीक है। ऐसा इंजन में तो अगर ऑटो इग्निशन हो जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नॉकिंग। ऑटो इग्निशन होता है तो क्या बोलते हैं, नॉकिंग। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो होगा ही ऑटो इग्निशन, बिकॉज अगर ऑटो इग्निशन नहीं होगा तो देयर विल बी नो कंबशन, बिकॉज इन डीजल इंजन होना ही क्या है, ऑटो इग्निशन होना है। व्हाई, बिकॉज यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल। okay, and when you will inject fuel over a high temperature high pressure air, so it will initially क्या होगा, it will come in contact with air। तो पहले तो क्या होगा, as it will come in contact with air, it will like try to come in contact with oxygen, because for combustion it requires oxygen, so oxygen के contact में आएगा। जैसे ही oxygen के contact में आएगा, it will reach to the auto ignition temperature। why, because that particular air is at high temperature high pressure। air किस पे है, high temperature high pressure पे। so जैसे ही fuel के molecule आप spray करोगे, तो first it will try to extract air, every particle of the fuel will try to extract sufficient amount of air so that it can combust, combustion reaction can begin, so its temperature will also increase because the air temperature is high। ओके, सो उसकी वजह से क्या होगा, तब क्या होगी, कंबशन बिगिंस होगी, ऑटो इग्निशन होगा। तो ऑटो इग्निशन अगर डीजल इंजन में नहीं होगा तो कंबशन होगी ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे देयर इज नो एक्सटर्नल सोर्स, देयर इज नो स्पार्क प्लग विच इज यू कैन से इनिशिएटिंग कंबशन, द कंबशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू द ऑटो इग्निशन ऑफ द फ्यूल। ओके, सो इन डीजल इंजन देयर इज नो ऑटो इग्निशन, there will be no combustion, but in petrol engine there is an external source which is actually igniting the combustion, which is actually initiating the combustion process, and that is known as spark plug। okay, I think it is now clear what is the difference between like SI engine and CI engine. The combustion is not homogeneous, combustion is heterogeneous, the wide range of air fuel ratio you will get. And what is the meaning of swirl requirement, friends? What is the meaning of swirl, friends? Actually, if you will analyze in petrol engine and diesel engine, in petrol engine turbulence is required. Why turbulence is required? Because sir, if how you will answer, because if the turbulence is high,
what you will say, if the turbulence is high, intermixing will be large, the flame front speed will increase. Okay, so auto ignition tendency will decrease. Okay, so turbulence is required. But what is turbulence? What is the difference between turbulence and swirl? Turbulence is simply the, you can say, random molecular motion, fast random molecular motion. Okay, that is turbulence. But what is swirl? Swirl kya hota hai? It is basically the controlled motion of the air inside the combustion chamber, that is known as swirl. Okay, so swirl is a kind of turbulent motion, but turbulent is a kind of random motion. So if that motion is there, okay, but it is some much more controlled motion, that is known as swirl. Okay, why swirl is required as compared to turbulent in CI engine, friends? Why? Because in CI engine the mixture, there is only suction of air is taking place. सक्शन में क्या आ रहा है? एयर आ रहा है, तो एयर के ऊपर आप क्या इंजेक्ट कर रहे हैं? फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे अगर टर्बुलेंस है मतलब रैंडम मिक्सिंग है, देयर इज नो पर्टिकुलर रिक्वायर्ड, यू कैन से कंट्रोल्ड मोशन, रिक्वायर्ड कंट्रोल्ड मोशन नहीं है, तो क्या होगा? सम ऑफ द एयर, like some of the fuel particle will get sufficient air. Okay, and some of the fluid particle does not get sufficient air. क्योंकि क्या होगा, देखो जैसे आप फ्यूल को इंजेक्ट कर रहे हैं, ओके, अगर रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन है, ओनली टर्बुलेंट की अगर हम बात करें, ओनली टर्बुलेंस है, तो क्या होगा? कुछ फ्लूइड पार्टिकल्स तो सफिशिएंट ऑक्सीजन ले लेंगे, बट कुछ को क्या होगा? कुछ को सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी. ठीक है, तो क्या होगा? इनकम्प्लीट कंबशन होगा. ठीक है, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अब बहुत ही स्मोगी एग्जॉस्ट मिलेगा. बट यू विल गेट वेरी स्मोगी एग्जॉस्ट, डार्क आपको एग्जॉस्ट मिलेगा. ओके, तो ये नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए? एक कंट्रोल्ड मोशन होना चाहिए. कंट्रोल मोशन मतलब कि एवरी फ्लूइड पार्टिकल, एवरी फ्यूल पार्टिकल विल गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, कि हर एक फ्लूइड पार्टिकल को क्या मिल जाए? सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल जाए. वहां पे ऐसा नहीं था, क्योंकि वहां पे क्या था? ऐसा इंजन में क्या था? एयर फ्यूल मिक्सचर इज कमिंग इनटू द कंबशन चैम्बर. एयर फ्यूल मिक्सचर ही आ रहा था. अब वो क्या है? वो सेटल डाउन होके आ रहे हैं, वो पार्टी बना के आ रहे हैं. फ्यूल पार्टिकल, सपोज ये क्या है? एक फ्यूल पार्टिकल है, ये क्या? ऑक्सीजन पार्टिकल है. ये क्या है? फ्यूल पार्टिकल, और ये अपने साथ टीम बना के आ रहा है. फ्यूल पार्टिकल टीम बना के आ रहा था किसमें? एसआई इंजन में. बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आके उसको पहले टीम बनानी है. पहले तो क्या करना है? ऑक्सीजन, फ्यूल पार्टिकल जैसे ही अंदर जाएंगे तो क्या करेंगे? सर्च में रहेंगे किसकी? ऑक्सीजन की. तो सबसे पहले तो वो ऑक्सीजन को ढूंढेंगे. अगर उनको ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो कंबशन होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो कंबशन नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा. ठीक है, तो ये कभी भी डिजायरेबल नहीं. तो यहाँ पे स्वर्ल की रिक्वायरमेंट पड़ती है किसमें? सी इंजन में. ऐसा इंजन में हमारी स्वर्ल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, बिकॉज मिक्सचर क्या आ रहा है? हमारा होमोजेनियस मिक्सचर आ रहा है, बिकॉज देयर इज अ सेपरेट डिवाइस, कार्बोरेटर, विच इज प्रोवाइडिंग अस द एयर फ्यूल मिक्सचर. Okay, so this thing that is important for you. Okay, so next important thing is like in CI engine मिक्सचर क्या है? हेट्रोजीनियस है. क्या हो रहा है? सिंगल फ्लेम फ्रंट नहीं बनेगी, मल्टीपल पॉइंट्स पे. सपोज ये आपका कंबशन चैम्बर है, तो यहाँ पे एक फ्लेम फ्रंट बनेगी. यहाँ मान लीजिए लोकल जोन्स हैं, फॉर एग्जांपल ये कुछ लोकल जोन्स है, ये एक लोकल जोन है, मान लीजिए ये एक लोकल जोन है, ये एक लोकल जोन है, ये एक लोकल जोन है. ठीक है, ये क्या है? मल्टीपल लोकल जोन है जहां पे मिक्सचर रिच है, जहां पे क्या है? मिक्सचर क्या है? रिच है. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगी? कंबशन बिगिंस होगी. तो यहाँ पे ऑटो इग्निशन होगी, यहाँ पे ऑटो इग्निशन होगी, यहाँ पे ऑटो इग्निशन होगी, तो मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स बनेंगे. देयर इज नो सिंगल फ्लेम फ्रंट. कोई भी एक सिंगल फ्लेम फ्रंट नहीं होता किसमें? डीजल इंजन में. ठीक है, बट पेट्रोल इंजन में क्या होता है? एक सिंगल फ्लेम फ्रंट होता है जो एंड चार्ज तक क्या करता है? मूव करता है. एंड चार्ज का भी कंबशन ऑटो इग्निशन से नहीं होता, वो किससे होता है? जब वो फ्लेम फ्रंट उस तक पहुंच जाता है. अगर एंड चार्ज का ऑटो इग्निशन हो जाए तो वही क्या हो जाता है? हमारी नॉकिंग हो जाती है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? एवरी चार्ज इज, यू कैन से, ऑटो इग्नाइटिंग. तो आप कहोगे सर ऑटो इग्निशन से तो नॉकिंग नहीं होता, तो इसमें नॉकिंग कैसे होगा? दैट वी विल डिस्कस कि हाउ abnormal combustion, how abnormal combustion, what is abnormal combustion in CI engine and how that abnormal combustion takes place in CI engine, that we will discuss in detail. Okay, I think now you are having that basic understanding what is the difference between the combustion in CI engine and combustion in SI engine. दोनों में क्या difference है? I think that difference you can segregate. Okay, so let's move to now like one more thing you need to understand, like petrol diesel engine में क्या होगा? देखो जो आप fuel inject करोगे, okay, जब फ्यूल आप इंजेक्ट करोगे इट इज एट वेरी हाई प्रेशर. ओके, जो फ्यूल इंजेक्टर आप कर रहे हो, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी नोजल लाइक द नोजल विच यू आर यूजिंग इन ए कार्बोरेटर एंड द नोजल यू आर यूजिंग इन ए कंबशन चैम्बर. दे आर नॉट सेम. Both are nozzle, but what is the difference? The nozzle which you are using in a carburetor it is like a very simple ordinary nozzle, because that nozzle need to inject fuel in a air which is at atmospheric pressure. air किस पे है? atmospheric pressure पे. और उस atmospheric pressure पे जो air है उसको क्या करना है? penetrate करना है. because if this fuel does not penetrate, because देखो आप देख रहे हैं, देखो orange color fuel,
देखो आप देख पा रहे हैं द ऑरेंज कलर फ्यूल व्हेन इट इज इंजेक्टिंग इनटू द हाई प्रेशर एयर, वो कहां हो रहा है, पूरे के पूरे फ्यूल में क्या हो रहा है, पूरे के पूरे एयर में क्या हो रहा है, मिक्स हो रहा है. ओके, बिकॉज इफ इट इज नॉट एबल टू पेनिट्रेट दैट पर्टिकुलर एयर, it will not able to get that particular required mixture. आपको required combustible mixture मिलेगा ही नहीं, और अगर required combustible mixture नहीं बनेगा तो combustion नहीं होगी. That's why in case of diesel engine we need to inject fuel at very high pressure. बहुत हाई प्रेशर पे आपको क्या करना पड़ता है, इंजेक्ट करना पड़ता है. व्हाई? बिकॉज द एयर प्रेजेंट इन द कंबशन चैम्बर, इट इज नॉट ए ऑर्डिनरी एयर, इट इज नॉट ए एयर विच इज एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज एयर विच इज एट वेरी हाई प्रेशर. बिकॉज ये एयर की कंडीशन कब है, आफ्टर द कंप्रेशन. और आफ्टर द कंप्रेशन एयर का प्रेशर क्या है, इफ यू विल जनरली कंपेयर लाइक कंप्रेशन रेशियो ऑफ द सीए इंजन, व्हाट इज द कंप्रेशन रेशियो ऑफ द सीए इंजन, इट इज इन द रेंज ऑफ 16 to 20. 16 से कितना होता है, 20 होता है. तो 16 से 20 होता है. अगर इफ यू विल कंपेयर प्रेशर रेशियो ऑल्सो, कंपेयर जस्ट एनालाइज दिस एज लाइक द इनटेक एयर क्या है, आ रही है मान लीजिए 300 केल्विन पे, ठीक है, और प्रेशर क्या है मान लीजिए 1 एटमॉस्फेरिक पे आ रही है, इस टेम्परेचर पे आ रही है. ओके, सो इफ यू विल अप्लाई द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, यू विल चेक लाइक व्हाट टाइप ऑफ प्रेशर वी आर गेटिंग. एक आइसेंट्रोपिक इक्वेशन लगा के T2 by T1 equal to P2 by P1 की पावर गामा minus 1 by gamma. If you will apply that particular equation, you will able to analyze कि how much pressure you are getting, okay, at the end. Okay, so what I want to say friends, that pressure is very high, the pressure at the end of the compression is very high. Okay, so when pressure is very high, so very high injecting pressure is required for the sufficient, you can say, penetration of the fuel inside the air. तो आपको बहुत हाई प्रेशर पे क्या करना पड़ता है, फ्यूल को इंजेक्ट करना पड़ सकता है. कई बार इतना हाई प्रेशर भी होता है इन केस ऑफ मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम. अगर हम बात करें किसकी, मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम की. ओके, लेट्स बिगिन टू नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स, स्टेजेस ऑफ कंबशन. वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर अस, stages of combustion. Okay, so there are also like as compared to petrol engine there are 4 stages. Okay, और वो 4 stages क्या क्या है भाई, देखो फर्स्ट स्टेज क्या है हमारी, इग्निशन डिले. first stage from this point to this point. Okay, from this point to this point, this stage is known as ignition delay. इसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन डिले पीरियड. ओके, सेकंड स्टेज क्या है, देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इसे हम क्या बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड कंबशन. थर्ड स्टेज इज दिस स्टेज, इसे हम क्या बोलते हैं, कंट्रोल्ड कंबशन. एंड फोर्थ स्टेज क्या है, आफ्टर बर्निंग. इट इज नॉट लाइक दैट इट विल एंड एट दिस पॉइंट, इट इज नॉट लाइक दैट, इट विल फर्दर कैन गो अप टू 60-70 डिग्री, 60-70 डिग्री तक भी ये जा सकती है. Okay, in this particular diagram the afterburning stage is shown up to this point. Okay, but it can go up to 60-70 degree, 60 से 70 डिग्री आगे तक भी ये जा सकती है. अभी यहाँ पे कितना शो रहा है, देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे it is ending at only 20-30 ना, it is not like that, it can further go up to 60-70 degree. Okay, so what you need to know, what are these different stages, ये 4 different stages क्या है भाई. Okay, देखो पेट्रोल इंजन में क्या होता है, आप स्पार्क इनिशिएट करते हैं, स्पार्क क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं, उसके बाद कंबशन इनिशिएट होती है. ओके, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, इट इज टाइम गैप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ द इंजेक्शन एंड स्टार्ट ऑफ द कंबशन, उसे हम क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग. ओके, बट यहाँ पे क्या है, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये पॉइंट क्या है भाई, इट इज अ पॉइंट ऑफ द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन. इट इज अ पॉइंट ऑफ स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, जहां पे आपने इंजेक्शन को स्टार्ट कर दिया है. मतलब जो फ्यूल इंजेक्टर है उसने फ्यूल इंजेक्ट करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया है. पॉइंट वेयर इंजेक्शन स्टार्ट्स. ओके, अब ये कौन सा पॉइंट है भाई, व्हाट इज दैट पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा, इट इज अ पॉइंट वेयर कंबशन बिगिंस, जहां पे कंबशन शुरू हो गया है, स्टार्ट ऑफ कंबशन. ओके, इट इज नॉट लाइक दैट कि यू इंजेक्टेड फ्यूल इनटू द हाई कंप्रेशन, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एयर एंड इट विल इमीडिएटली इग्नाइट. इट इज नॉट लाइक, इट विल टेक सम टाइम. दैट टाइम इज वेरी लेस. that we are showing this in degree. If you will compare, it is hardly not more than 5-6 degree. If you will compare, not more than 5 to 10 degree, if you will maximum take 5 to 10 degree. So if you are interested to convert this 5 to 10 degree TDS angle into second, अगर आप इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, if you will check easily you can check. What I want to say कि this time is not zero, it is having some magnitude, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू है, but it is not zero. Okay, so the fuel will take some time, okay, between the start of injection and actual begin of the start of combustion. कुछ टाइम लेगा फ्यूल, कहां से, स्टार्ट ऑफ कंबशन से लेके स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके स्टार्ट ऑफ कंबशन में कुछ टाइम लेगा, और उसे हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1. इसे हम क्या बोलते हैं, स्टेज 1, दैट इज नोन एज इग्निशन लैग, इग्निशन डिले पीरियड. इसे क्या बोलेंगे, इग्निशन डिले पीरियड इन सीआई इंजन. ओके, और इसका दूसरा नाम क्या है भाई, दिस इज आल्सो नोन एज प्रीपरेटरी फेज. इसे हम क्या बोलते हैं, प्रीपरेटरी फेज, बिकॉज ये वो फेज है जो क्या करता है, प्रिपेयर कर देता है
मिक्सचर को क्या कर देता है, प्रिपेयर करता है, सो दैट केमिकल रिएक्शन कैन बिगिन, ताकि रिएक्शन क्या हो जाए, बिगिन हो जाए। तो इस फेज को हम क्या बोलते हैं, प्रिपरेटरी फेज। ओके, इसमें दो स्टेजेस होते हैं भाई, देखो जस्ट नोट इट डाउन। इग्निशन डिले पीरियड में दो तरह के डिले होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ डिलेज इन इग्निशन डिले पीरियड। वन इज फिजिकल डिले, एक होता है फिजिकल डिले, ठीक है, एक होता है केमिकल डिले। There are two type of delays in this particular ignition delay period. One is chemical delay and second one is physical. पहले physical होता है, उसके बाद chemical होता है। तो first क्या है, physical delay, second क्या होता है आपका, chemical delay। Okay, अभी physical delay क्या होता है भाई, what is physical delay? देखो एक टाइम होता है जो फ्यूल लेता है, किसमें, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके एंड अटेनमेंट ऑफ द कंडीशन टू स्टार्ट द केमिकल रिएक्शन, कि वो कंडीशंस को अटेन करना सो दैट केमिकल रिएक्शन शुरू हो जाए। ओके, जस्ट नोट इट डाउन फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फिजिकल डिले? फिजिकल डिले क्या होता है भाई, इट इज अ टाइम गैप, इट इज अ टाइम गैप बिटवीन द स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन एंड अटेनमेंट ऑफ द कंडीशंस, अटेनमेंट ऑफ द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, कि उन कंडीशंस को अटेन करना कि केमिकल रिएक्शन क्या हो जाए, शुरू हो जाए। अब वो उन कंडीशंस का मतलब क्या है, कि एवरी फ्यूल विल गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन, एवरी फ्यूल विल have at sufficient temperature so that it will auto ignite. Okay, so attainment of chemical reactions, condition for chemical reaction क्या है, कि वो उस conditions पे चला जाए ताकि chemical reaction शुरू हो पाए। वो जितना टाइम लेगा उस conditions पे आने के लिए, because you are injecting a fuel which is at some atmospheric temperature, किस पे है, atmospheric temperature पे है, but उस temperature पे उसका auto ignition temperature क्या है, very high। okay, so it will come in contact with air which is at high temperature, so वो क्या करेगा, उसका auto ignition temperature decrease करेगा, because when it will come in contact with high temperature air, its auto ignition temperature will increase, the pressure is also high, that temperature pressure of the air is also high, so auto ignition temperature slightly decrease करेगा। okay, so और क्या करेगा, उसका उसका खुद का टेम्परेचर प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वो क्या होगा, ऑटोमाइज होगा, फ्यूल में क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। ओके, सो इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोमाइजेशन ऑफ द फ्यूल। इसको आप दूसरी तरह से कैसे बोल सकते हैं, कि फिजिकल डिले क्या है, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ऑटोमाइजेशन ऑफ द फ्यूल, मिक्सिंग ऑफ द फ्यूल एंड अटेनमेंट ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर रिक्वायर्ड फॉर द प्री इग्निशन। प्री इग्निशन के लिए कितना टेम्परेचर प्रेशर चाहिए, उस कंडीशंस को क्या करना, अटेन करना, उसे आप क्या बोलते हैं, फिजिकल डिले, उसे आप क्या बोलोगे, फिजिकल डिले। बट इस कंडीशन पे आने के बाद भी, अभी तक तो इस कंडीशन पे था ही नहीं, तो पहले तो कुछ टाइम लेगा उस कंडीशन पे आने के लिए, जिसका आप क्या बोलेंगे, फिजिकल डिले। अब जब उस कंडीशन पे आ गया, उसके बाद भी वो फ्यूल क्या लेगा, इट विल टेक सम टाइम टू एक्चुअली इग्नाइट। okay, now the fuel is at some, you can say, condition which are required for begin of the chemical reaction। chemical reaction begin होने के लिए जो कंडीशन चाहिए, फ्यूल उस कंडीशन पे है, बट इट विल फर्दर टेक स्मॉल टाइम। मैंने बताया आपको, बहुत स्मॉल टाइम है, वो दोबारा से क्या लेगा, कुछ और टाइम लेगा टू एक्चुअली बिगिंस द कंबशन। ओके, उसे आप क्या बोलते हैं, केमिकल डिले, उसे आप क्या बोलते हैं, केमिकल डिले। तो ये जो स्टेज वन है, ये जो स्टेज वन है, जो मैंने आपको ऐसे दिखाई, स्टेज वन, उस स्टेज वन में दो पार्ट होते हैं भाई। स्टेज वन में क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ऐसे करके क्या होते हैं आपके, दो पार्ट होते हैं, ठीक है, ये क्या है आपके, दो पार्ट, ठीक है। ये क्या है आपका, फर्स्ट क्या है, फिजिकल डिले, फर्स्ट क्या है आपका, फिजिकल डिले। ये सेकंड क्या है आपका, केमिकल डिले। फर्स्ट इज फिजिकल डिले, सेकंड वन इज केमिकल डिले। और इस पूरे को क्या बोलते हैं भाई, पूरे को बोलते हैं डिले पीरियड, पूरे को क्या बोलते हैं, डिले पीरियड, ठीक है। और जो ये केमिकल डिले होता है, इट इज स्लाइटली मोर देन दी फिजिकल डिले, थोड़ा सा इससे ज्यादा होता है, ठीक है। केमिकल डिले स्लाइटली मोर देन दी फिजिकल डिले, ये थोड़ा सा इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। जस्ट नोट इट डाउन। ओके, लेट्स कम टू नेक्स्ट स्टेज। अब सेकंड स्टेज पे आ जाते हैं। अब आप मेरे को एक बात बताओ, इग्निशन लैग जो था आपका एसआई में, वो किससे रिप्लेस होगा, इट विल रिप्लेस बाय कंप्लीट फिजिकल डिले, डिले पीरियड, फिजिकल डिले और केमिकल डिले। कौन किसको रिप्लेस करोगे आप, इग्निशन लैग को किससे रिप्लेस करोगे। देखो इग्निशन लैग क्या था, इग्निशन लैग में क्या था, अभी जो एयर थी, जब स्टार्ट ऑफ, यहां पे आपने क्या किया, स्पार्क इनिशिएट किया था, यहां पे आपने क्या किया था, स्पार्क इनिशिएट किया था। ओके, और जब आपने स्पार्क इनिशिएट किया था, तो एयर फ्यूल मिक्सचर किस पे था, इट इज एट सम, यू कैन से, कंडीशन ऑफ द कंबशन, जो कंबशन के लिए जो कंडीशन थी उस पर था क्या, नहीं था, यस, इट इज एट दैट कंडीशन। व्हाई, बिकॉज आपके पास आया क्या था, एयर फ्यूल मिक्सचर, और एयर फ्यूल मिक्सचर को आप कंप्रेस कर चुके थे, जब आपने स्पार्क किया, इट इज एट दैट कंडीशन। तो स्पार्क देने में और कंबशन के होने में जो टाइम था, उसे आप क्या बोलते हैं, इग्निशन लैग। ओके, सो इग्निशन लैग यहां पे क्या है, यहां पे बन जाता है केमिकल डिले। जो इग्निशन लैग आपके पास था एसआई में, एसआई इंजन में जो इग्निशन लैग होता है ना,
ऐसा इंजन के अंदर जो क्या होता है इग्निशन लैग, वो यहाँ पे क्या बन जाता है, केमिकल डिले बन जाता है। किसके अंदर, सी इंजन के अंदर फिजिकल डिले एडिशनल ऐड होगा, व्हाई, बिकॉज ओनली सक्शन ऑफ द एयर इज टेकिंग प्लेस एंड यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल। ओके, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज डिले पीरियड। डिले पीरियड क्या होगा, स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन से लेके एक्चुअल बिगिन ऑफ द कंबशन, उसे हम क्या बोलेंगे, डिले पीरियड। डिले पीरियड में दो पार्ट होंगे, वन इज फिजिकल डिले, सेकंड वन इज केमिकल डिले। फिजिकल डिले क्या होगा, फिजिकल डिले किस पे डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, फिजिकल डिले डिपेंड करेगा कितना अच्छे से आप इंजेक्शन कर रहे हो, ठीक है, इंजेक्शन पे डिपेंड करेगा। ओके, बिकॉज इस पे फिजिकल डिले में आप क्या कर रहे हो, ऑटोमाइज करवा रहे हो फ्यूल को, क्या करवा रहे हो, ऑटोमाइज। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ द फ्यूल पार्टिकल इन वेरी स्मॉल फाइन ड्रॉपलेट्स, बहुत ही स्मॉल फाइन स्प्रे की फॉर्म में, ड्रॉपलेट भी नहीं कहेंगे, स्प्रे की फॉर्म में, वेरी फाइन स्प्रे की फॉर्म में आपको क्या करना, उसको तोड़ना, उसे आप क्या बोलते हैं, ऑटोमाइजेशन। ओके, सिंपल स्प्रेइंग में और ऑटोमाइजेशन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। स्प्रेइंग में क्या कर रहे हैं हम, स्प्रे कर रहे हैं तो इट इज इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉप्स बेसिकली। और जब आप बोलते हैं ऑटोमाइजेशन, ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या है, एटम की, मतलब आपने उतना फाइन कर दिया, जो स्प्रे है आपका, जो आपका स्प्रे है वो इतना फाइन है कि यू कैन से कि इट इज हैविंग ए साइज ऑफ एटम, कि जो स्प्रे है, जो स्प्रे पार्टिकल्स निकल रहे हैं वो एटम के साइज का है, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग इट इज एज ए एटोमाइजेशन, एटोमाइजिंग, उसको आप क्या बोल रहे हैं, एटोमाइजिंग। बट एक्चुअली ऐसा नहीं हो सकता ना कि वो एटम के साइज का हो, बट व्हाट यू कैन से इट इज वेरी स्मॉल। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या है कि पार्टिकल विच यू आर स्प्रेइंग इट इज एट वेरी स्मॉल साइज, बहुत ही स्मॉल साइज के क्या है वो पार्टिकल्स हैं, वेरी स्मॉल साइज, दैट यू कैन से इट इज लाइक ए एटम साइज, और दैट्स व्हाई इट इज नोन एज ऑटोमाइजिंग। तो ऑटोमाइजिंग में और सिंपल स्प्रेइंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, ऑटोमाइजिंग हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, वेपराइजेशन हो रही है। ऑटोमाइजेशन के बाद क्या होगा, मिक्स वेपराइजेशन होगा, जो फ्यूल पार्टिकल वो क्या करेगा, वेपराइज करेगा, जैसे ही इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद हाई टेम्परेचर एयर इट विल वेपराइज। फर्स्ट nozzle will automize it, then it will come in contact with high temperature air, high pressure air, it will vaporize। वेपराइजेशन के बाद क्या होगा, मिक्सिंग होगी भाई, एयर के अंदर क्या होगी, swirl है, swirl आपने प्रोड्यूस किया, सो दैट देयर विल बी सफिशिएंट मिक्सिंग, प्रॉपर क्या हो जाएगी, मिक्सिंग हो जाएगी। ओके, मिक्सिंग के बाद वो क्या करेगा, अटेन करेगा किसको, टेम्परेचर प्रेशर जो भी रिक्वायर्ड है कंबशन के लिए, वो सारा का सारा काम किस में होगा, फिजिकल डिले में, ठीक है। अब उसके बाद भी वो कंडीशन अटेन करने के बाद भी पर्टिकुलर फ्यूल विल टेक सम टाइम टू एक्चुअली इग्नाइट। एक्चुअली इग्नाइट होने के लिए वो क्या लेगा, यहाँ पे कंडीशन उसने अटेन कर ली है, अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअल कंबशन बिगिन होगी, इसके बीच में भी वो कुछ टाइम लेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, केमिकल डिले। ओके, अब ये केमिकल डिले क्या होगा, फ्लूइड की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये तो आप कर रहे हो, आप ऑटोमाइजिंग कर रहे हो, आप इंजेक्शन कर रहे हो, मिक्सिंग करवा रहे हो, बट ये क्या है, एक फ्लूइड का नेचर है भाई, आप नहीं कुछ कर सकते, इट इज लाइक पर्टिकुलर नेचर ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड। अब वो फ्लूइड कितना टाइम लेता है, वो पर्टिकुलर क्या होगा, उसकी कितनी क्या है, उसका सिटी नंबर कितना है, ठीक है, क्या कंबशन का क्वालिटी है उसकी, तो कितना उसका केमिकल डिले है, ठीक है, दैट इज पर्टिकुलर नेचर ऑफ द पर्टिकुलर फ्लूइड, कितना टाइम वो ले रहा है एक्चुअल अटेनमेंट के बाद कंबशन होने में, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ आपका क्या है, डिजाइन रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा, फिजिकल डिले। बट केमिकल जो डिले है वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका फ्यूल के ऊपर, मेजरली इट इज डिपेंडिंग ऑन द फ्यूल। ओके, बिकॉज इसमें आप कुछ नहीं कर रहे, इसमें फ्यूल टाइम ले रहा है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इट इज डिपेंडिंग ऑन योर डिजाइन, कितना अच्छा आपने स्वर्ल प्रोड्यूस किया, कितना अच्छा आपने ऑटोमाइज किया, ओके, मिक्सिंग की, दैट इज मेजरली डिपेंड्स ऑन द डिजाइन। बट ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली फ्यूल पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि फ्यूल कितना अच्छे से वेपराइज कर रहा है, उसकी वेपराइजेशन कितनी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। बट मेजरली इट डिपेंड्स ऑन द डिजाइन ऑफ योर कंबशन चैम्बर, और ये किस पे डिपेंड करेगा, मेजरली डिपेंड्स ऑन फ्यूल। ओके, सो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, देखो अब क्या है, यहां से कंबशन क्या हो गई, इनिशिएट हो गई। ओके, या व्हाट यू कैन से कि इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कि ये पॉइंट वो है जहां पे आपकी प्रेशर पी थीटा कर्व मोटरिंग कर्व से अलग हो जाती है। मोटरिंग कर्व का मतलब क्या है, मोटरिंग को बोलते हैं नो फायरिंग। मोटरिंग का मतलब क्या होता है, नो फायरिंग, कि मतलब फायरिंग हुआ ही नहीं, कंबशन हुआ ही नहीं। नो फायरिंग मतलब नो कंबशन, कंबशन हुआ ही नहीं। तो ये जो कर्व है, देखो अगर कंबशन हुआ तो ये कर्व यहां ऊपर चली जाएगी, और अगर कंबशन नहीं होगा तो क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है, आप गाड़ी को किक कर रहे हो, बाइक है आपके पास, अब मान लीजिए वो तो पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन की कोई गाड़ी है, आप उसको स्विच कर रहे हो बट वो स्टार्ट नहीं हो रही, ऐसा हो सकता है। तो आप कर रहे हो बट वो कंबशन नहीं हो रहा, कंबशन इनिशिएट नहीं हो रहा, देयर कैन बी सो मेनी रीजंस, कोई कोल्ड स्टार्टिंग की वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई अदर प्रॉब्लम है। अगर नहीं हो रही तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोटरिंग। मोटरिंग का मतलब नो फायरिंग, नो फायरिंग मतलब नो कंबशन, की कंबशन हुआ नहीं। तो इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, इट्स अ पॉइंट वेयर पी थीटा कर्व सेपरेट्स फ्रॉम द मोटरिंग कर्व। ये जो पी थीटा कर्व है सेपरेट हो जाती है किससे, मोटरिंग कर्व से, ठीक है। इस पॉइंट को ये भी बोलते हैं एक्चुअल स्टार्ट ऑफ द कंबशन, और द पॉइंट वेयर पी थीटा कर्व सेपरेट्स द मोटरिंग कर्व। ओके, सो यहां पे कंबशन शुरू हो गई है, इस पॉइंट पे क्या हो गई, कंबशन शुरू हो गई है। ओके, बट कंबशन कैसी है भाई,
uncontrolled combustion. Why I am saying it is uncontrolled combustion in CI engine? Uncontrolled combustion क्यों होगा? Because you know there is no single flame front. डीजल इंजन में कोई सिंगल फ्लेम फ्रंट होता ही नहीं भाई. सभी के सभी फ्लूइड पार्टिकल क्या करेंगे? ऑटो इग्नाइट करेंगे. हर फ्लूइड पार्टिकल जो जो जहां जहां पे है, जहां जहां पे लोकल रेंज, लोकल जोन्स हैं, जिन लोकल जोन में रिच मिक्सचर है भाई, जिन लोकल जोन में क्या है? रिच मिक्सचर. मान लीजिए यहाँ पे क्या है? रिच मिक्सचर है, तो ये क्या करेगा? ऑटो इग्नाइट करेगा. इट विल ऑटो इग्नाइट. तो ये भी ऑटो इग्नाइट कर रहा है, ये भी ऑटो इग्नाइट कर रहा है, ये भी ऑटो इग्नाइट कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या बोलेंगे? अनकंट्रोल्ड कंबशन. कंबशन कैसा होगा? अनकंट्रोल्ड. ओके. इनिशियली क्या होगा? अनकंट्रोल्ड कंबशन. और इस पर्टिकुलर एरिया में जो पी थीटा कर्व है आपको बहुत शार्प मिलेगा, बहुत ही शार्प प्राइस मिलेगा प्रेशर का. बिकॉज सबसे ज्यादा जो हीट जनरेशन होता है, सबसे ज्यादा जो जनरेशन ऑफ हीट है वो इसी जोन में होता है. सबसे ज्यादा हीट जनरेशन इसी जोन में होगा, अनकंट्रोल्ड कंबशन में, स्टेज नंबर 2 में. ओके. और प्रेशर बहुत शार्पली राइज करेगा, वेरी शार्प राइज इन प्रेशर यू विल ऑब्जर्व. ओके. किसमें? अनकंट्रोल्ड जोन में. ओके. ठीक है. अनकंट्रोल्ड मतलब देर आर मल्टीपल लोकल जोन्स वेयर कंबशन विल बिगिंस, बट इट इज नॉट ए कंट्रोल. वहां पे बहुत फास्ट आपको रैपिड, व्हाट यू कैन से कि रैपिड राइज मिलेगा. आपको क्या मिलेगा? रैपिड राइज मिलेगा. रैपिड राइज इन प्रेशर मिलेगा. रैपिड राइज इन प्रेशर. ओके. ठीक है. इसलिए अब इसे क्या बोलोगे आप? अनकंट्रोल्ड कंबशन. बट देखो अभी तक इंजेक्शन चल रहा है. इंजेक्शन यहां से शुरू हुआ था, यहां से इंजेक्शन आपने शुरू किया था भाई. इंजेक्शन बंद नहीं हुआ, इंजेक्शन चलता रहता है. 10-15 डिग्री आफ्टर टीडीएस तक वो चलता रहता है. देखो आप देख पा रहे हो 20 डिग्री, अप्रोक्सीमेट 20 डिग्री टीडीएस पे आपने बिगिन किया, और ये 10-15 डिग्री तक यहां तक चलता रहेगा. ऐसा नहीं है कि यहां तक, कई बार यहां तक भी चलता रहेगा. 10-15-20 टीडीएस तक वो चलता रहेगा. अप्रोक्सीमेटली 30-35 टीडीएस वो लेगा. ओके. क्या पूरा का पूरा टाइम ऑफ इंजेक्शन. डिग्री में अगर मैं बात करूं, डिग्री में भी बात कर सकते हैं, और हम मिली सेकंड में भी बात कर सकते हैं. यू नो डिग्री को मिली सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है. आई थिंक यू आर हैविंग दैट बेसिकल अंडरस्टैंडिंग कि डिग्री को टाइम में से कैसे कन्वर्ट करना है. ओके. सो ये जो टाइम है इतना स्पार्क इंजेक्शन लेगा. ओके. तो मेरा मतलब क्या है कि अभी स्पार्क इंजेक्शन हो रहा है, सॉरी अभी फ्यूल इंजेक्शन क्या हो रहा है. इंजेक्टर से आप क्या कर रहे हो? फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो. ठीक है. अब क्या होगा? अनकंट्रोल्ड कंबशन के बाद क्या हो जाएगी? कंट्रोल्ड कंबशन हो जाएगी. फिर क्या होगी? कंट्रोल्ड कंबशन. कंट्रोल्ड कंबशन का मतलब क्या है कि प्रेशर, अभी जो प्रेशर है, अब थोड़ा सा क्या होगा? एक्सपेंशन शुरू हो गया है. देखो इधर तक अभी तक क्या था? अभी तक आप टीडीएस पे आ रहे थे. अभी तक कहां रहते हैं आप? टीडीएस पे. ओके. सो प्रेशर तो वैसे ही राइज कर रहा था, बिकॉज जब तक आप टीडीएस पे आओगे तो गैस को तो आप क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो, तो प्रेशर तो वैसे ही राइज कर रहा है. और यहाँ पे और रैपिड राइज मिलेगा. नॉर्मली तो प्रेशर यहीं तक राइज होना था, फिर डिक्रीज करना था, बट अभी बहुत रैपिड राइज मिला क्योंकि कंबशन बिगिंस होगी. उसके बाद क्या होगी? कंट्रोल्ड कंबशन होगी. कंट्रोल्ड कंबशन मतलब अभी आप फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो. ओके. और अंदर क्या है? डिले पीरियड बहुत कम हो गया. व्हाई? अभी क्यों कम हो गया? क्योंकि अंदर जो कंडीशन अब वो कंबशन हो चुकी, अंदर जो गैसेस है उसमें कंबशन हो रहा है. ठीक है. अभी आप जैसे ही फ्यूल इंजेक्ट करोगे इमीडिएटली इट विल इग्नाइट. जैसे ही आप क्या करोगे? फ्यूल इंजेक्ट करोगे इमीडिएटली इट विल इग्नाइट. व्हाई? बिकॉज अंदर कंबशन शुरू हो रखा है. डीजल इंजन के अंदर क्या है? कंबशन हो रखा है. इमीडिएटली इट विल कम इन कॉन्टेक्ट विद लाइक हॉट एयर. हॉट नहीं बोलेंगे उसमें, क्या बोलोगे? फायर बेसिकली. उसके कॉन्टेक्ट में आएगा और इमीडिएटली इट विल इग्नाइट. बहुत फास्ट वो क्या करेगा? इग्नाइट करेगा. ठीक है. तो रिएक्शन क्या होगा? कुछ ना कुछ क्या होगा? कंट्रोल्ड होगा. बहुत रैपिड राइज नहीं मिलेगा, कंट्रोल्ड प्रेशर राइज मिलेगा. क्या मिलेगा? कंट्रोल्ड. और इस पॉइंट के बाद देखो, इस रीजन में कंट्रोल्ड कंबशन में आपको क्या मिलता है? देखो इस पॉइंट पे तो आपको क्या मिलता है? एट द एंड ऑफ स्टेज 2, स्टेज 2 के एंड पे आपको क्या मिलता है? मैक्सिमम प्रेशर मिलता है. स्टेज 2 के एंड पे क्या मिलता है आपको? मैक्सिमम प्रेशर. बट जो स्टेज 3 है ना, स्टेज 3 के एंड पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिलता है. यहां पे क्या मिलता है? मैक्सिमम टेम्परेचर. स्टेज 2 के एंड पे आपको क्या मिल रहा है? मैक्सिमम प्रेशर. स्टेज 3 के एंड पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम टेम्परेचर. तो प्रेशर तो डिक्रीज करेगा, बट यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल. आप फ्यूल क्या कर रहे हैं? इंजेक्ट कर रहे हैं. एंड व्हेन यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल, कंबशन इज एक्चुअली हैपनिंग. तो उसकी वजह से प्रेशर डज नॉट इंक्रीज फर्दर, बिकॉज एक तो क्या है? एक्सपेंशन शुरू हो गया है. दूसरा दूसरा क्या है? अभी वो क्या है? कंट्रोल्ड कंबशन है. बिकॉज जैसे ही फ्यूल आ रहा है इमीडिएटली इट इज इग्नाइटिंग. ओके. सो टेम्परेचर बट इंक्रीज करेगा. व्हाई टेम्परेचर विल इंक्रीज? बिकॉज इनिशियली पहले तो कुछ कंबशन हो ही रखा था. व्हेन यू आर फर्दर इंजेक्टिंग सम फ्यूल, तो उसमें भी कंबशन होगा, तो टेम्परेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा. तो एट दिस पॉइंट, एट द एंड ऑफ 3, आपको क्या मिलेगा? टी मैक्स मिलेगा. I think it is now clear what is the difference between controlled combustion and uncontrolled combustion. Okay, so controlled में और uncontrolled में क्या difference है, इसको थोड़ा सा समझ लो. uncontrolled में rapid pressure rise होगा. ठीक है. मल्टीपल पॉइंट्स पे क्या होगा? कंबशन शुरू हो जाएगा.
ठीक है। बट कंट्रोल में क्या होगा, जैसे ही अभी क्या है, फ्यूल कंबशन हो चुका है, जैसे आप फ्यूल इंजेक्ट करो कि इमीडिएटली इट विल इग्नाइट। ओके, सो एज सच कोई मल्टीपल पॉइंट्स पे कोई ऐसा नहीं है कि वो हो रहा है, वो क्या है, इट इज मोर कंट्रोल्ड मैनर, एक कंट्रोल्ड मैनर में होगा। तो रैपिड प्रेशराइज आपको देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कंट्रोल्ड कंबशन। ओके, अब कंट्रोल्ड कंबशन कहां पे एंड होगी भाई, पी मैक्स पे, जहां पे आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्टेज है, आफ्टर बर्निंग स्टेज। आफ्टर बर्निंग स्टेज, आफ्टर बर्निंग का मतलब क्या होता है, जो भी रिमेनिंग चार्ज रह गया है, जो भी रिमेनिंग क्या रह गया है, चार्ज, मतलब एयर फ्यूल का मिक्सचर, तो वो क्या करेगा, बर्न करेगा। और ये कहां तक जा सकता है, मैंने बताया अभी, कहां तक जा सकता है, 60-70 आगे तक जा सकता है। इट कैन गो अप टू 60-70 टीडीएस तक, टीडीसी 60-70 डिग्री आगे टीडीसी तक ये जा सकता है। यहाँ पे क्या था आपका टीडीसी, इससे आगे 60 से 70 डिग्री और जा सकता है। ओके, इसे हम क्या बोलेंगे, आफ्टर बर्निंग मींस रिमेनिंग चार्ज विल फर्दर बर्न। ओके, बट इंजेक्शन विजेक्शन आपकी बंद हो गई है, यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह आपकी बंद हो चुकी है, बट जो भी रिमेनिंग चार्ज है वो भी क्या कर जाएगा, आपका बर्न कर जाएगा। कहीं भी छुपा हुआ बैठा है, अगर ये आपका कंबशन चैम्बर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चार्ज है, यहाँ पे कहीं भी कुछ कुछ भी रह गया है, तो वो सब क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। ठीक है, उससे आप क्या बोलते हैं, आफ्टर बर्निंग स्टेज। तो देखो इस स्टेज में क्या कर रहा था, स्टेज 2 में प्रेशराइज कर रहा था, स्टेज 3 में टेम्परेचराइज करेगा, टी मैक्स मिलेगा आपको यहाँ पे। ओके, सो आई थिंक यू कैन सेग्रीगेट दीज 4 स्टेजेस। आप इन 4 स्टेज को क्या कर पा रहे हैं, सेग्रीगेट कर पा रहे हैं, किसमें, सी इंजन में। ओके, सो इट इज स्टार्ट ऑफ इंजेक्शन, स्टार्ट ऑफ कंबशन, केमिकल रिएक्शन, ये क्या है आपका पी मैक्स, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम प्रेशर मिलेगा। और ये क्या आपकी कंट्रोल्ड कंबशन, अनकंट्रोल्ड कंबशन, ये क्या आपकी स्टेज 2 अनकंट्रोल्ड कंबशन। फिर मैक्सिमम पी मैक्स के बाद एक पॉइंट मिलेगा आपको क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर। ठीक है, मैक्सिमम क्या मिलेगा आपको, टेम्परेचर, स्टेज 3 मिलेगी कंट्रोल्ड कंबशन। उसके बाद आफ्टर बर्निंग जो भी रिमेनिंग अनबर्न चार्ज रहेगा वो क्या करेगा, आपका बर्न हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि सर इसमें अनकंट्रोल्ड तो है, ठीक है, समझ में आया कि नोकिंग कैसे होगी, डीजल इंजन में नोकिंग कैसे हो जाएगी भाई। अगर हम बात करें कि डीजल इंजन में नोकिंग कैसे हो जाएगी, अब नोकिंग क्या होती है, अब नॉर्मल कंबशन। ओके, अब डीजल इंजन में नोकिंग एक लाइन में समझ जाओगे आप, सिर्फ इसको ध्यान से समझना है कि देखो डीजल इंजन में नोकिंग कैसे होती है। देखो देखो ये कोई कंबशन चैम्बर है जिसमें आप फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो, इसमें आप क्या कर रहे हो, फ्यूल इंजेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सपोज इफ दिस पर्टिकुलर फ्यूल इज हैविंग लार्ज डिले पीरियड, क्या आपको समझना है कि मान लीजिए ये जो पर्टिकुलर फ्यूल है, ये पर्टिकुलर कंबशन चैम्बर, इसमें जो फ्यूल है इसका डिले पीरियड क्या है, लार्ज है। पर्टिकुलर फ्लूइड फ्यूल एयर मिक्सर दैट इज हैविंग लार्ज डिले पीरियड, उसका डिले पीरियड क्या है, लार्ज है। अगर डिले पीरियड लार्ज है तो क्या होगा, आप इंजेक्ट कर रहे हो, आपने इंजेक्ट किया, यहाँ पे इंजेक्ट किया, ये इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया, इंजेक्ट किया, बट ये कंबशन हो ही रहा है भाई। इसमें क्या है, कंबशन नहीं हो रहा है, यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल बट इट इज नॉट, कंबशन इज नॉट टेकिंग प्लेस। व्हाई सर, डिले पीरियड इज लार्ज, डिले पीरियड इसका लार्ज है, डिले पीरियड क्या है इसका ज्यादा है। देयर आर सो मेनी रीजन जिसकी वजह से डिले पीरियड बढ़ जाता है। ठीक है, बात करेंगे, मान लीजिए डिले पीरियड क्या है, ज्यादा है। अगर डिले पीरियड क्या है, ज्यादा है, तो क्या होगा, यहां पे क्या होगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, इफ डिले पीरियड इज लार्ज, डिले पीरियड क्या है, लार्ज है, डिले पीरियड क्या है, लार्ज है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन, क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, किसका, फ्यूल पार्टिकल्स का। फ्यूल पार्टिकल क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि कंबशन तो हो नहीं रहा, उनका डिले पीरियड क्या है, ज्यादा है, तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज। ओके, फिर क्या होगा भाई, आप तो कंप्रेस करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, अब डिले पीरियड लार्ज है, इसका मतलब ये तो ना भी कंबशन नहीं होगा, लार्ज डिले पीरियड है, बट इट इज नॉट, यू कैन से कि वो कंबशन होगा नहीं, कंबशन होगा। और जैसे ही होगा, अब वहां पे फ्यूल क्या है, बहुत ज्यादा है, फ्यूल पार्टिकल क्या है, बहुत ज्यादा है। डिले पीरियड लार्ज था तो नोजल क्या है, नोजल क्या कर रही है, नोजल तो इंजेक्ट की जा रही है, उसको थोड़ा ना पता है कि कंबशन हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो गया, और जैसे ही डिले पीरियड खत्म होगा तो फ्यूल पार्टिकल क्या करेंगे, इग्नाइट करेंगे। अब यहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्यूल इज वेरी लार्ज, अमाउंट ऑफ फ्यूल क्या है, वेरी लार्ज, तो यहाँ पे बहुत ही क्या होगा, एक बहुत ही वेरी फास्ट, वेरी रैपिड, यू कैन से वेरी रैपिड प्रेशर राइज होगा। रैपिड पहले भी हो रहा था, ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी रैपिड था, ये भी अनकंट्रोल्ड था, ये भी क्या है, अनकंट्रोल्ड कंबशन है। ओके, बट ये फिर भी क्या था, एक लिमिट में था। देखो डीजल इंजन में अनकंट्रोल्ड कंबशन तो होगा ही होगा। एक बहुत बारीक लाइन है जो एक क्या करेगी, नोकिंग को और अनकंट्रोल्ड कंबशन को सेग्रीगेट करेगी डीजल इंजन में। अनकंट्रोल्ड कंबशन तो हो गई होगा, अगर वो अनकंट्रोल्ड कंबशन जब हो रहा है, वहां पे बहुत लार्ज चार्ज है, बहुत ही सीवियर प्रेशर राइज है, मैं आपको बोलूं, रैपिड ना बोल के मैं सीवियर बोल देता हूं। देखो रैपिड ना बोल के क्या बोल रहा हूं, सीवियर प्रेशर राइज है, सीवियर प्रेशर राइज।
ठीक है, रैपिड तो इसमें भी हो रहा था अनकंट्रोल में, बट अभी क्या बहुत सीवियर प्रेशराइज। व्हाई देयर विल बी वेरी सीवियर प्रेशराइज? बिकॉज वहां पे फ्यूल पार्टिकल का एक्यूमुलेशन हो गया था, और जब वो फ्यूल पार्टिकल एकदम से इग्नाइट करेंगे, एकदम से क्यों इग्नाइट करेंगे? क्योंकि उनका डिले पीरियड क्या हो जाएगा, खत्म होगा कहीं ना कहीं। अब आप कहोगे सर सबका एक टाइम पे कैसे खत्म हो जाएगा? जो इनिशियली शुरू में आया उसका तो डिले पीरियड कुछ है, बाकी का कैसे खत्म हो जाएगा? भाई जब आप इंजेक्ट कर रहे हो तो जो गैस है उसका टेम्परेचर प्रेशर भी तो बढ़ता चला जा रहा है। तो जो शुरू में इंजेक्ट किया वो क्या है, उसका डिले पीरियड कुछ है, मान लीजिए कुछ भी सफिशिएंट है, उसके बाद जो इंजेक्ट कर रहे हो उसको इंजेक्ट किस पे कर रहे हो? जो जिस एयर पे कर रहे हो वो दोनों एयर डिफरेंट है। जिसको इनिशियली इंजेक्ट किया था वो किस एयर पे इंजेक्ट किया था, जो कंपैरेटिवली लो टेम्परेचर पे थी, लो प्रेशर पे थी। अभी जो थोड़े टाइम बाद जो इंजेक्ट किया है जिसका उसका भी एक्यूमुलेशन हो गया, बट वो किस पे है, वो और ज्यादा हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे है। तो ओवरऑल वो सभी के सभी एकदम से इग्नाइट करेंगे। या मान लीजिए कोई एक ने किया, अब किसी एक ने किया, बट जब ये एक करेगा तो क्या होगा, बहुत हाई टेम्परेचर प्रेशर कंबशन हो जाएगी। तो इसके साथ साथ के भी जो एक्यूमुलेशन जहां पे चार्ज का हो रखा था वो भी एकदम से इग्नाइट हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर बढ़ेगा, देखो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, जैसे ही टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है ना, तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज करता है भाई। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज करता है, जैसे जैसे टेम्परेचर प्रेशर क्या बढ़ता है, तो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फॉर एग्जांपल इफ यू विल टेक एनी फ्यूल, पेट्रोल डीजल, तो अगर मैं कहूं कि इस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये ऑटो इग्निशन टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे वो इग्नाइट कर जाएगा। ठीक है, अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, प्रेशर मैंने फिक्स कर दिया एटमॉस्फेरिक, तो इस टेम्परेचर पे वो इग्नाइट कर जाएगा। ठीक है, बट मैं कहूं कि आपने प्रेशर बढ़ा दिया, ठीक है, या टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा, ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज करता है। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर आपका डिक्रीज करेगा। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन चेंज हो रही है, जब आप यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो और जब आप यहाँ पे इंजेक्ट कर रहे हो तो कंडीशंस आर डिफरेंट। ओके, सो एक्यूमुलेशन की वजह से फ्यूल पार्टिकल क्या करेंगे, फ्यूल पार्टिकल दे विल इग्नाइट, दे विल ऑटो इग्नाइट, उसमें भी क्या होगा, ऑटो इग्नाइट होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, रैपिड प्रेशर राइज होगा, सीवियर प्रेशर राइज होगा। सीवियर क्या होगा, प्रेशर राइज होगा। ओके, और यही इस सीवियर प्रेशर राइज की वजह से क्या होगा, नॉकिंग हो जाएगी। इसी को क्या, इसी सीवियर प्रेशराइज को क्या बोलेंगे, नोकिंग। बिकॉज जब ये सीवियर प्रेशराइज होगा तो वहां पे क्या होगा, इंजन आपके एकदम से वाइब्रेट करेगा, बहुत हाई यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर पल्सेस क्या होंगी, जनरेट होंगी ड्यू टू दिस सीवियर प्रेशराइज। ओके, बहुत हाई अमाउंट ऑफ क्या होंगी, प्रेशर पल्सेस जनरेट होंगी, इंजन विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इंजन आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देगा, बहुत ही एक अजीब आपको साउंड आपको सुनाई देगी। ओके, जिस साउंड को आप ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि इंजन में नोकिंग हो रही है या नहीं हो रही है। पेट्रोल इंजन में तो वो साउंड बड़ी क्लियर होती है। वाई इट इज वेरी क्लियर इन पेट्रोल इंजन, बिकॉज पेट्रोल इंजन में तो अगर नोकिंग होगी तो साउंड आएगी, अगर नहीं नोकिंग होगी तो साउंड नहीं आएगी। बट डीजल इंजन में क्या है, डीजल इंजन में तो अनकंट्रोल्ड कंबशन चलता ही चलता है, तो कुछ ना कुछ तो साउंड आती ही रहती है, कुछ ना कुछ साउंड तो आती ही रहती है, बिकॉज अनकंट्रोल्ड कंबशन चल रहा है। ओके, अब ये साउंड की मैग्नीट्यूड आप बताओ कि साउंड की जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ा और बढ़ जाएगी अगर नोकिंग हो रहा है, तो साउंड की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी, बस इतना डिफरेंस आएगा। बट साउंड इसमें नॉर्मली आती रहती है, इसलिए वेरी डिफिकल्ट टू सेग्रीगेट बिटवीन अनकंट्रोल्ड कंबशन एंड नोकिंग। सी इंजन में दोनों को सेग्रीगेट करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है सिर्फ बाय लिसनिंग टू द साउंड विच यू आर गेटिंग। ओके, बट नोकिंग होगा, नोकिंग क्या होगा, नोकिंग तो होता है ना, सीआई इंजन में भी होता है और डीजल इंजन में भी होता है। डीजल इंजन में नोकिंग क्या होगा, एक्यूमुलेशन की वजह से होगा, चार्ज के एक्यूमुलेशन की वजह से लार्ज डिले पीरियड। बट सीआई इंजन में क्या होता है भाई, ऐसा इंजन में, देखो ऐसे इंजन में जो नोकिंग होता है वो एंड चार्ज का होता है। देखो ये आपकी फ्लेम फ्रंट थी, ये फ्लेम फ्रंट पहुंच रही है, जो एंड चार्ज है ना, जो एंड चार्ज है, ये एंड चार्ज ऑटो इग्नाइट हो जाता है। ये एंड चार्ज क्या हो जाता है, ऑटो इग्नाइट, किसमें, एसआई इंजन में। बट ऐसा इसमें नहीं है, इसमें कोई एंड चार्ज नहीं है, इसमें कोई एंड चार्ज नहीं है, बिकॉज मिक्सचर क्या है, हेट्रोजीनियस है, कोई एंड चार्ज नहीं है, कोई सिंगल फ्लेम फ्रंट नहीं है इसमें। ओके, मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो नोकिंग होगी ना वो एट द स्टार्ट ऑफ कंबशन ही हो जाएगी। डीजल इंजन में जो नोकिंग होगी वो कहां पे होगी, एट द स्टार्ट ऑफ कंबशन। देखो यहां पे कंबशन हुई, यहीं पे नोकिंग मिल जाएगी आपको। अगर नोकिंग हुई डीजल इंजन में, अगर नोकिंग हुई तो कहां मिल जाएगी, एट द स्टार्ट ऑफ कंबशन। बट पेट्रोल इंजन में नोकिंग कहां मिलती है, एट द एंड ऑफ कंबशन। क्योंकि ऐसा इंजन में नोकिंग क्या होती है, इफ एनीबडी विल आस्क यू व्हाट इज नोकिंग इन ऐसा इंजन, सो नाउ यू विल एबल टू सेग्रीगेट, सर इन ऐसा इंजन नोकिंग इज द ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड चार्ज। एंड चार्ज का जो ऑटो इग्निशन होता है ना, ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड चार्ज, उसे आप क्या बोलते हैं, नोकिंग इन एसआई इंजन। व्हाट इज नोकिंग इन सीआई इंजन, सर इट इज द ऑटो इग्निशन ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज, जो चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हो गया है उसका ऑटो इग्निशन, उसे आप क्या बोलते हैं, नोकिंग इन सीआई इंजन। देखो दैट इज सिंगल लाइन, इफ यू विल डिफाइन नोकिंग by this line, nobody will question, okay, you will be able to answer what is that knocking
what is the difference between, and further you can link various things with that particular line. तो इसमें क्या होगा, एंड चार्ज का ऑटो इग्निशन होगा। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपका चार्ज का जो एक्यूमुलेशन हुआ उसमें क्या हो जाएगी, ऑटो इग्निशन हो जाएगी। इसमें भी ऑटो इग्निशन हो रही है, इसमें भी ऑटो इग्निशन हो रही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, ये ऑटो इग्निशन किसका है, एंड चार्ज का, और ये ऑटो इग्निशन किसका है, एक्यूमुलेटेड चार्ज का। दिस इज द ऑटो इग्निशन ऑफ द एक्यूमुलेटेड चार्ज एंड दिस इज द ऑटो इग्निशन ऑफ द एंड चार्ज। ओके, ये किसमें था, एसआई इंजन में, ये किसमें है, सी इंजन में। एसआई इंजन में नॉकिंग कहां होती है, कंबशन के एंड पे, क्योंकि कंबशन खत्म होने वाला ना, अभी एंड चार्ज रह गया, थोड़ा सा एंड चार्ज रह गया और वो ऑटो इग्नाइट कर गया। ये कहां पे होगा, एट द एंड ऑफ द कंबशन। बट सीआई इंजन में कंबशन कहां पे होगा, नॉकिंग कहां पे होगी, एट द स्टार्ट ऑफ द कंबशन। सीआई इंजन में नॉकिंग कहां पे होती है, एट द स्टार्ट ऑफ द कंबशन। ओके, I think you are now aware, you are now able to segregate between the knocking in SI engine and knocking in CI engine. Okay, I think now it is clear. Okay, so what you need to know कि अनकंट्रोल्ड कम्बशन तो हो ही होगा, बट उस एक्यूमुलेशन की वजह से, एक्यूमुलेशन क्यों हो रहा है भाई, व्हाई देयर इज एक्यूमुलेशन, बिकॉज ड्यू टू द इंक्रीज डिले पीरियड। अब उस डिले पीरियड को समझना हमारा इंपॉर्टेंट है कि वो डिले पीरियड कैसे बढ़ सकता है, कैसे घट सकता है, कौन से फैक्टर्स हैं जो डिले पीरियड को अफेक्ट करते हैं। बिकॉज जितने भी फैक्टर होंगे जो डिले पीरियड को अफेक्ट करेंगे, दे ऑल विल अफेक्ट नॉकिंग इन सीआई इंजन। जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिले पीरियड को अफेक्ट करते हैं सीआई इंजन में, ऑल दोज फैक्टर अफेक्ट नॉकिंग इन सीआई इंजन। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, जो आपका ऐसा इंजन होता है उसमें मिक्सचर आपका होमोजीनियस होता है। तो जो प्रेशराइज होता है ना नोकिंग के टाइम पे, नोकिंग के टाइम पे जो प्रेशराइज होता है वो बहुत बहुत फास्ट राइज होता है। डीजल इंजन में क्या है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस है, तो नोकिंग तो होती है, बट एज कंपेयर टू ऐसा इंजन प्रेशराइज इतना ज्यादा नहीं होता, कम होता है, प्रेशराइज थोड़ा सा कम होता है। व्हाई, बिकॉज मिक्सचर हेट्रोजीनियस होता है। इन केस ऑफ डीजल इंजन मिक्सचर इज हेट्रोजीनियस, सो इन व्हेन नोकिंग विल टेक्स प्लेस इन सीआई इंजन, द प्रेशर rise is not as large as the pressure rise in knocking when it is taking place in the SI engine. Why? Because in SI engine mixture क्या होता है आपका, homogeneous होता है। homogeneous होता है तो वो तो बहुत जल्दी कंबस्ट करेगा ना, ऑटो इग्नाइट करेगा, बहुत जल्दी सीवियर प्रेशराइज होगा। इसमें क्या है, मिक्सचर हेट्रोजीनियस है, प्रेशराइज तो होगा बट इट इज लेस एज कंपेयर टू दी, यू कैन से, नोकिंग इन ऐसा इंजन। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो जब प्रेशर राइज होगा ना तो कुछ ना कुछ एक कंडीशन आ जाएंगी जिसमें आपका जो पिस्टन है ना, एक तरह से पिस्टन में जैमिंग जैमिंग शुरू हो जाएगी, जो पिस्टन है आपका जैमिंग उसमें शुरू हो जाएगी। ओके, वाइब्रेशन शुरू हो जाएगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, हम नोकिंग बोलते हैं। और व्हाई वी विल नॉट रिक्वायर नोकिंग इन एनी इंजन, यू नो नोकिंग से क्या क्या इफेक्ट आते हैं, आई थिंक दैट इज क्लियर टू यू व्हेन वी हैव स्टडीड नोकिंग इन ऐसा इंजन। जितने जो इफेक्ट थे नोकिंग के ऐसे इंजन में, वो सारे इफेक्ट हमें यहाँ भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, वाइब्रेशंस होंगी, मटेरियल रिमूव हो सकता है आपका, पिस्टन डैमेज हो सकता है, इंजन ओवरऑल डैमेज हो सकता है। ठीक है, इंपिंजिंग साउंड आपको यहाँ पे मिलेगी और स्मॉल स्मॉल मटेरियल क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो जाएगा। तो वो सारे इफेक्ट आपको इसमें भी मिलेंगे। ओके, सो लेट्स स्टडी। और ये जो कर्व है आपकी, देखो फर्स्ट लेट्स डिस्कस दिस कर्व। देखिए ये जो कर्व है आपको पी थीटा कर्व, नोकिंग किसमें, नोकिंग इन सी इंजन। तो ये देखो नोकिंग आपको कहां दिख रही है, यहां दिख रही है, बिल्कुल यहाँ पे इस टीडीसी के पास। व्हाई यू आर शोइंग दिस कर्व एट दिस पॉइंट। ये कर्व क्या शो करती है भाई, ये शो करती है कि अभी नोकिंग हो गई है, अभी यहाँ पे क्या हो गई, नोकिंग हो गई है। ठीक है, प्रेशर पल्सेस जनरेट होगी, ये क्या शो कर रहा है, प्रेशर पल्सेस। ये क्या शो कर रहा है हमारे पास, प्रेशर पल्सेस। ठीक है, अब ये कहां शो कर रहे हैं, बिल्कुल टीडीसी के पास। बट अगर ये ऐसा इंजन होता तो ऐसा इंजन में कहां शो करते हैं भाई, ऐसे इंजन में कहां, ऐसा इंजन में तो यहां शो करते हैं एट द एंड ऑफ द कंबशन। एट द एंड ऑफ द कंबशन कहां होती है, ऐसा इंजन में, और इसमें कहां होती है, स्टार्ट ऑफ द कंबशन। ओके, अब ये क्या होती है, ये हम पूरा बात कर चुके हैं। अब ये डायग्राम होगा भाई, दिस इज द डायग्राम फॉर पी थीटा कर्व। जब क्या होगी, नोकिंग हो जाएगी, जब क्या हो जाएगी आपकी, नोकिंग हो जाएगी किसमें, सीआई इंजन में। ओके, नाउ लेट्स कम टू वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट डिले पीरियड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डिले पीरियड को अफेक्ट करते हैं। डिले पीरियड क्या होता है, आई थिंक इट इज नाउ क्लियर। देखो फर्स्ट है कंप्रेशन रेशियो, बहुत इंपॉर्टेंट है आपको इनको समझना। ठीक है, बिकॉज जितने भी फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर ऐसे हैं जो नोकिंग इन ऐसा इंजन में तो क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, बट यहाँ पे क्या करेंगे, वहां पे तो इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे डिक्रीज करेंगे। बहुत सारे फैक्टर जो आपको समझना है। पहला फैक्टर है कंप्रेशन रेशियो। देखो अगर मैं कहूं कि कंप्रेशन रेशियो आपने बढ़ा दिया, कंप्रेशन रेशियो आपने बढ़ा दिया, तो डिले पीरियड बढ़ेगा या घटेगा भाई, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से डिले पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से डिले पीरियड, मैं डिले पीरियड को डीपी से लिख रहा हूं भाई, डिले पीरियड को किस लिख रहा हूं, डीपी से। तो डिले पीरियड डिक्रीज करेगा, जैसे जैसे आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे डिले पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। व्हाई इट विल डिक्रीज, पहली बात कि जैसे ही कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ता है,
कंप्रेशन रेशियो बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऑटोमाइजिंग वेपराइजेशन बढ़ेगी ना, ऑटोमाइजेशन और वेपराइजेशन क्या हो रही बढ़ेगी। और फ्यूल अगर इजीली ऑटोमाइज वेपराइज हो पा रहा है तो डिले पीरियड क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके और प्रेशर इंक्रीज करने से, जो आपने प्रेशर इंक्रीज कर दिया, एयर का आपने कंप्रेशन रेशियो बढ़ा दिया तो प्रेशर क्या कर दिया आपने, इंक्रीज कर दिया। तो क्या होता है, इस टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जो आपका फ्यूल है उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर भी क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। देखो ऑटो इग्निशन टेम्परेचर अगर उसका ज्यादा है तो तभी तो वो केमिकल डिले ले रहा है। फिजिकल कंडीशन अटेन करने के बाद भी वो कुछ टाइम ले रहा है इग्निशन शुरू होने में, वो क्या है, केमिकल डिले। ठीक है, अगर उसका डिले, आपका इग्निशन टेम्परेचर कम हो जाए, फ्यूल का इग्निशन टेम्परेचर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो वो जल्दी इग्नाइट हो जाएगा। जल्दी इग्नाइट हो जाएगा तो केमिकल डिले कम हो जाएगा, केमिकल डिले कम हो जाएगा तो ओवरऑल डिले पीरियड क्या हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। और डिले पीरियड अगर कम हो जाएगा तो एक्यूमुलेशन नहीं होगा, एक्यूमुलेशन नहीं होगा तो नोकिंग नहीं होगी। सो व्हाट यू कैन से कि अगर आर बढ़ता है तो डिले पीरियड डिक्रीज करता है। व्हाई, पहली बार टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने से ऑटो इग्निशन टेम्परेचर डिक्रीज करता है। तो कम टेम्परेचर पे भी वो क्या होता है, फ्यूल ऑटो इग्नाइट हो पाता है। और कम टेम्परेचर पे भी ऑटो इग्नाइट हो पाएगा तो डिले पीरियड क्या हो गया आपका, कम हो गया है। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल डिले पीरियड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये जो कंप्रेशन रेशियो आपको फेवर करता है, नोकिंग टेंडेंसी को डिक्रीज करता है इन सीआई इंजन। सीआई इंजन में कंप्रेशन रेशियो बढ़ने से नोकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती है। बट ऐसे इंजन में क्या था भाई, ऐसे इंजन में तो आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो नोकिंग टेंडेंसी इंक्रीज कर जाती है। व्हाई, बिकॉज जब आप कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर प्रेशर बढ़ जाता है जिससे ऑटो इग्निशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। वहां पे क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहां पे ओनली एयर नहीं है जिसको आप कंप्रेस कर रहे हैं, आप कंप्रेस किसको कर रहे हैं, एयर फ्यूल मिक्सचर को। बट यहां पे किसको कंप्रेस कर रहे हैं, ओनली एयर को। when you are compressing, the compression of only air is taking place. okay, so compression ratio ज्यादा होगा, इसलिए डीजल इंजन का compression ratio कितना होगा, ज्यादा होगा 16:20। अब आप कहोगे सर जब कंप्रेशन रेशियो से कुछ हो ही नहीं रहा है तो बढ़ा दो यार, इसको इसको 20 से ज्यादा रख दो, क्या दिक्कत है, कंप्रेशन रेशियो से नोकिंग तो नहीं हो रही, तो वाई वी आर लिमिटिंग इट टू 20 पे क्यों लिमिट कर रहे हैं। देखो अगर आप कंप्रेशन रेशियो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो इंजन का वेट बढ़ जाता है भाई, इंजन का वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आपको सर वेट क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि जब कंप्रेशन रेशियो बढ़ाओगे तो यू नीड टू मेक दैट पर्टिकुलर इंजन मोर रोबस्ट, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी तो बनाना पड़ेगा कि वो इतना हाई प्रेशर बियर कर पाए। इतना कंप्रेशन रेशियो का मतलब क्या है, प्रेशर कैलकुलेट करना कितना आ जाएगा बार में, इफ यू विल कैलकुलेट प्रेशर, देखो कितना प्रेशर आ जाएगा आपका। ठीक है, देखो अगर आप इसको देखोगे, देखो इजीली इजीली यू कैन कैलकुलेट। देखो पीवी की पावर गामा इक्वल टू क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यू नो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो इसको लिख लो P2 V2 की पावर गामा इक्वल टू P1 V1 की पावर गामा। क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भाई। तो P2 बाई P1 क्या हो जाएगा, देखो P2 बाई P1 क्या हो जाएगा, इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा, यही तो होता है। V2 बाई V1 इक्वल टू V1 बाई V2 की पावर गामा। और V1 बाई V2 क्या होता है आपका, V1 बाई V2 क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो, यही तो कंप्रेशन रेशियो है आपका, यही क्या आपका कंप्रेशन रेशियो, इसी को क्या बोलते हैं कंप्रेशन रेशियो। तो P2 कितना है, P2 इक्वल टू P1 इंटू आर की पावर गामा, आर की पावर गामा। ओके, और P1 कितना है, इसको मैं मान लू 1 एटमोस्फेरिक, 1 बार, इसको मैं क्या बोल रहा हूँ 1 बार, इसको क्या बोल रहा हूँ 1 बार। अब आर कितना है भाई, चलो 16 नहीं 17 नहीं 18 नहीं, इसको 18 मान लेते हैं, 16 से 20 है तो हमने कितना मान लिया 18। अब 18 की पावर 1.4, 18 की पावर 1.4, इफ यू विल कैलकुलेट P2 देखो कितना आ रहा है, बार में कितना आ रहा है। ठीक है, ये 1 बार था किस पे, बिफोर द स्टार्ट ऑफ द कंप्रेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 बार सक्शन प्रेशर। अभी एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रेशर कितना है, वेरी हाई, बहुत हाई प्रेशर मिलेगा आपको। अगर आप कंप्रेशन रेशियो और ज्यादा बढ़ाओगे तो ये क्या है, देखो ये सिर्फ 20 से मतलब नहीं है, बट ये कितना है 20 की पावर 1.4, तो ये मल्टीपल हो रहा है भाई, बहुत रैपिड रेट पे इंक्रीज करेगा। तो अगर आप इसको बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो आपका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उतना प्रेशर बढ़ाने के लिए आपको इंजन उतना रोबस्ट बनाना पड़ेगा सो दैट इट कैन बियर ना। अब ये जब P2 आएगा तो उस प्रेशर को बियर किसको करना है, योर पिस्टन नीड्स टू बियर दैट प्रेशर, योर कंबशन चैम्बर सिलेंडर वॉल्व्स दे नीड टू बियर दैट ह्यूज प्रेशर ना, उनको वो ह्यूज प्रेशर बियर करना है। ठीक है, ठीक है, अब ये प्रेशर अगर बढ़ जाएगा तो कंबशन के बाद जो प्रेशर मिलेगा वो और भी ज्यादा मिलेगा। ऐसा नहीं कि यही मैक्सिमम प्रेशर, दिस इज नॉट मैक्सिमम प्रेशर, बट अगर यही आपका मान लीजिए आपने कंप्रेशन रेशियो 25 कर दिया, 25 कर दिया, तो ये आपका कुछ भी बार में आया, देखोगे इसको फॉर एग्जांपल मान लीजिए आ रहा है आपका 40 बार, फॉर एग्जांपल ये आ रहा है कितना 40 बार आ रहा है, मान लीजिए कितना आ रहा है 40 बार के आसपास आ रहा है। अब ये अगर 40 बार है तो हीट जब आपकी कंबशन शुरू हो जाएगी उसके बाद जो प्रेशर मिलेगा वो तो बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा, ह्यूज प्रेशर हो जाएगा।
तो उतने हाई प्रेशर को सस्टेन करने के लिए आपको इंजन को क्या करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। ओके, सो इंजन को आपको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाओगे, उसकी डायमेंशन बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो ओवरऑल इंजन का आपका वेट बढ़ जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, सो कंप्रेशन रेशियो इज लिमिटेड नॉट ड्यू टू नॉकिंग, नॉकिंग की वजह से लिमिटेड नहीं है, बट कंप्रेशन रेशियो किसकी लिमिटेड है, डिजाइन रिक्वायरमेंट की वजह से, बिकॉज वेट ऑफ द इंजन विल इंक्रीज, फर्दर लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि देखो वैसे तो हम बोलते हैं कि एफिशिएंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। अब आर को जब आप बहुत ज्यादा बढ़ाओगे तो वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, फर्दर लॉसेस बढ़ने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो आर वेट किसका है, वेट ऑफ पिस्टन, पिस्टन का वेट है, कनेक्टिंग रोड। आपको सर वेट पिस्टन का, तो पिस्टन का ही तो बढ़ा, मैं कहूंगा पिस्टन का भी बढ़ेगा, कनेक्टिंग रोड का भी बढ़ेगा, क्रैंक शाफ्ट का भी बढ़ेगा, क्योंकि उन सबको वो प्रेशर क्या है, प्रेशर फोर्स अगर ज्यादा है तो इफ यू हैव कैरिड आउट द डायनेमिक फोर्स एनालिसिस, तो आप देख सकते हो कि वो प्रेशर कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होना है, वो पिस्टन पे भी होना है, वो कनेक्टिंग रोड पे भी जाना है, क्रैंक पे भी जाना है, क्रैंक शाफ्ट पे भी जाना है। तो जितने भी वो कंपोनेंट्स हैं उनका वेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उतना वेट बियर करने के लिए आपको उसकी डायमेंशंस बनानी पड़ेंगी, थिक बनाना पड़ेगा, तो लॉसेस फर्दर बढ़ जाएंगे। आप तो आर बढ़ा के एफिशिएंसी बढ़ाना चाह रहे हो, बट लॉसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो इट इज नॉट डिजायरेबल टू हैविंग कंप्रेशन रेशियो मोर देन 20, तो 20 से ज्यादा इसको कभी भी नहीं रखते, 16 से 20 ही रखते हैं। ठीक है, बट व्हाट यू नीड टू नो कि इट इज नॉट लिमिटेड ड्यू टू नोकिंग, नोकिंग की वजह से लिमिटेड नहीं है, लिमिटेड किसकी वजह से, डिजाइन कंसंट्रेशन की वजह से, डिजाइन रिक्वायरमेंट की वजह से, कि डिजाइन की कुछ लिमिटेशन है, उसकी वजह से क्या है, हमारा कंप्रेशन रेशियो क्या है, लिमिटेड है इन सीआई इंजन। ओके, बट कंप्रेशन रेशियो अगर बढ़ेगा तो नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, किसमें, सीआई इंजन। लिख लो इसको, द कंप्रेशन रेशियो विल इंक्रीज, डिले पीरियड विल डिक्रीज, एंड नोकिंग टेंडेंसी भी क्या करेगी आपकी, डिक्रीज करेगी, किसमें, सीआई इंजन में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, इंजन स्पीड। इंजन स्पीड, ओके, अब इंजन स्पीड क्या होती है भाई, इंजन किस स्पीड पे मूव कर रहा है। अब इंजन स्पीड अगर बढ़ेगी, अगर इंजन की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, तो जो आपका डिले पीरियड है ना, डिले पीरियड, अब डिले पीरियड में दो चीजें हैं देखो, एक तो डिले पीरियड थीटा में, रेडियन में अगर मैं बात करूं, एक डिले पीरियड है मिली सेकेंड में, डिले पीरियड इन थीटा, डिले पीरियड इन मिली सेकेंड। तो जैसे जैसे इंजन स्पीड बढ़ेगी तो डिले पीरियड मिली सेकेंड में डिक्रीज करेगा, डिले पीरियड तो डिक्रीज करेगा ही करेगा। अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, आपने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो स्पीड बहुत ज्यादा है, तो देखो अगर आपकी वो 5000 6000 आरपीएम है, इफ यू विल कैलकुलेट, इफ यू विल कन्वर्ट इट इनटू मिली सेकेंड, अगर 6000 की बजाय आरपीएम 8000 ले लो, 6000 आरपीएम की जगह यू विल टेक इफ आरपीएम 8000, तो यू विल फाइंड आउट कि जो टाइम क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, टाइम क्या करेगा आपका, डिक्रीज करेगा। सो डिले पीरियड इन मिली सेकेंड विल डिक्रीज, बट डिले पीरियड इन थीटा, एंगल में अगर मैं बात करूं, एंगल में, तो एंगल में तो वो इंक्रीज करता है। स्पीड के बढ़ने से डिले पीरियड एंगल में क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, वाई इट विल इंक्रीज इन एंगल, बिकॉज व्हेन द स्पीड विल इंक्रीज, जनरली जो आपका गियर फ्यूल पंप होता है, फ्यूल पंप विच इज गियर्ड विद योर शाफ्ट, शाफ्ट के हिसाब से क्या होता है, गियर्ड होता है, क्योंकि फ्यूल पंप को क्या करना है, फ्यूल इंजेक्ट करना है। ठीक है, तो जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इट नीड्स टू इंजेक्ट मोर फ्यूल, उसको ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना है, क्योंकि जैसे आप स्पीड बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो आपको फ्यूल पंप को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फ्यूल क्या करना पड़ेगा, इंजेक्शन करना पड़ेगा। तो एंगल में तो इंजेक्शन टाइमिंग, एंगल में, एंगल, तो एंगल तो बढ़ जाएगा, एंगल तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाई इट विल इंक्रीज इन एंगल, बिकॉज लो स्पीड पे आपको कम फ्यूल इंजेक्ट करना है, हाई स्पीड पे ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना है, ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करना है, तो एंगल तो बढ़ जाएगा, बट मिली सेकंड में वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, नोट इट डाउन, विद द इंक्रीज इन इंजन स्पीड, एंगल, डिले पीरियड एंगल में, थीटा में मैं बात करूं तो इंक्रीज करेगा, मिली सेकंड में क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, ऑटोमाइजेशन ऑफ फ्यूल की। अब ये तो बड़ा आसान है भाई, ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या है कि आप ऑटोमाइजेशन बहुत इफेक्टिव करवा रहे हो। पहले आप नॉर्मल ऑटोमाइजेशन करते हैं, बहुत अच्छी ऑटोमाइजेशन करवा रहे हो, ऑटोमाइजेशन मतलब वेरी फाइन स्प्रे कर रहे हो। अगर बहुत फाइन स्प्रे कर रहे हो तो डिले पीरियड क्या होगा, ये तो डिक्रीज करेगा, इसमें तो कुछ समझाने का है नहीं। ऑटोमाइजेशन का मतलब क्या है, यू आर इंजेक्टिंग फ्यूल एट वेरी फाइन ड्रॉपलेट, बहुत ही फाइन साइज पार्टिकल्स में आप क्या कर रहे हो, उसको स्प्रे कर रहे हो, तो डिले पीरियड डिक्रीज करेगा। इंजेक्शन टाइमिंग, अगर आप क्या करो, इंजेक्शन टाइमिंग को क्या करो, मान लीजिए इंजेक्शन टाइमिंग का मतलब क्या है कि इसको यहां से समझते हैं, देखो यहां से समझते हैं, इस तरह से समझते हैं। इंजेक्शन टाइमिंग का मतलब क्या है कि आप यहां इंजेक्ट ना करवा के मान लीजिए यहां पे इंजेक्ट करवाते हैं, आप क्या कर रहे हो, इंजेक्शन एडवांस कर रहे हो, इसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन एडवांस, इंजेक्शन एडवांस। ठीक है, अगर आपने इंजेक्शन क्या कर दिया, एडवांस कर दिया। ठीक है, अगर आप इंजेक्शन एडवांस करोगे तो डिले पीरियड आपका क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं।
क्यों नहीं घटेगा? क्योंकि जब आप यहाँ पे इंजेक्शन कर रहे हो, अब यहाँ पे जो कंडीशंस हैं इसके कंपैरिजन में एयर का टेम्परेचर क्या है? कम है, प्रेशर क्या है? कम है। जब आप इंजेक्शन को एडवांस करोगे, देखो इनिशियली तो आप इंजेक्शन कर रहे थे यहाँ पे, ये 1 पॉइंट पे, ठीक है। अभी आपने इंजेक्शन क्या कर दिया? एडवांस कर दिया, इंजेक्शन एडवांस कर दिया, ठीक है। इंजेक्शन एडवांस कर दिया मतलब इससे पहले कर रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो। अब यहाँ पे करने से मैं कह रहा हूँ डिले पीरियड बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर प्रेशर जो एयर का है यहाँ पे, दैट इज लेस, the temperature pressure of the air at this point is less, so delay period, it will take more time to actually ignite, further combustion होने में क्या लगेगा? वो टाइम लेगा, तो डिले पीरियड बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर आप कहोगे सर इसको तो पीछे कर दो, इसको एडवांस ना करके बहुत पीछे कर दो। अगर हम इसको बहुत पीछे कर दें, यहाँ पे कर दें, ठीक है, यहाँ पे इंजेक्शन कर दो भाई, टीडीसी के पास कर दो, पीछे कर दो, तो क्या हो जाएगा? देखो अगर हम इसको पीछे लेके जाएंगे तो क्या होगा? अब हम यहाँ पे हमारी पावर लॉस हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा पावर लॉस। तो हम इसको ज्यादा एडवांस भी नहीं करवा सकते, क्योंकि ज्यादा एडवांस करवाते हैं तो डिले पीरियड बढ़ जाता है, पीछे करवाते हैं तो हमारा पावर लॉस क्या होता है? बढ़ जाता है। बिकॉज यहाँ पे अभी क्या था? अभी तो यहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर बढ़ रहा था, ठीक है। यहाँ पे जब हम थोड़ा सा इसको नॉर्मली, जब हम इसको ऐसा ऑब्जर्व किया गया है कि नॉर्मली जब आप इसको 20 डिग्री एडवांस करवाते हैं, 20 डिग्री एडवांस, देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो आपको दिख रहा है 20 डिग्री एडवांस अप्रोक्सीमेटली टीडीसी से 20 डिग्री एडवांस करवाते हैं, ठीक है। तो डिले पीरियड डिक्रीज थोड़ा सा इंक्रीज तो करता है, बट पावर लॉसेस आपके रहते हैं, पावर लॉसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये इसको बिल्कुल टीडीसी के पास लेके आओगे तो आपके पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। डिले पीरियड तो डिक्रीज कर जाएगा, बट वो क्या हो जाएगा? आपके पावर लॉसेस क्या हो जाएंगे? डिक्रीज इंक्रीज कर जाएंगे। तो इसको बिल्कुल पीछे भी नहीं लेके जाते और बिल्कुल आगे भी एडवांस नहीं करते, क्योंकि अगर इसको इससे आगे और एडवांस करोगे आप 20 से ज्यादा, मतलब 30 डिग्री पे, 30 डिग्री बिफोर टीडीसी, अगर आप 30 डिग्री बिफोर टीडीसी पे कर देते हो तो क्या हो जाता है? डिले पीरियड बढ़ जाता है। डिले पीरियड बढ़ जाएगा मतलब नो की टेंडेंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। डिले पीरियड बढ़ रहा है तो नो की टेंडेंसी बढ़ेगी। अगर इसको बैकवर्ड करोगे तो पावर लॉसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको नॉर्मली रखते कहां पे हैं? 20 डिग्री पे। स्पार्क इंजेक्शन जो सॉरी जो आपका फ्यूल इंजेक्शन है, फ्यूल इंजेक्शन कहां पे शुरू करेंगे हम? 20 डिग्री बिफोर टीडीसी, ओके। तो आई थिंक नाउ यू कैन आंसर कि इंजेक्शन टाइमिंग कहां होती है। देखो इंजेक्शन टाइमिंग क्या है? नॉर्मली हम कहां रखते हैं? 20 डिग्री बिफोर टीडीसी। 20 डिग्री बिफोर टीडीसी पे हम इंजेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। 20 डिग्री बिफोर टीडीसी पे हम इंजेक्शन क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं। इंजेक्शन एडवांस, अगर आपसे कोई पूछे इंजेक्शन एडवांस करने से नोकिंग टेंडेंसी डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, व्हाट यू विल आंसर? इंजेक्शन एडवांस करने से नोकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करेगी। इंजेक्शन को अगर आप क्या करते हो? एडवांस ना करके अगर आप क्या करते हो? लैग करते हो या बैक करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा? आपका नोकिंग टेंडेंसी क्या करेगी? आपकी डिक्रीज करेगी, ठीक है। नॉर्मली हम इसको किस पे रखते हैं? 20 डिग्री बिफोर टीडीसी पे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इंजन आउटपुट। इंजन आउटपुट, ठीक है। अब इंजन आउटपुट का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंजन आउटपुट? कि इंजन की पावर आउटपुट ज्यादा है, ज्यादा पावर वो प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर पावर आउटपुट इंजन की क्या है? ज्यादा है, तो व्हाट इट मीन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इंजन आउटपुट? तो उसके अंदर टेम्परेचर प्रेशर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर पीक प्रेशर की मैं बात करूं, पीक प्रेशर, पीक प्रेशर, पीक टेम्परेचर क्या करेगा? बढ़ेगा ना। अगर इंजन की आउटपुट क्या है? ज्यादा है, तो पीक टेम्परेचर पीक प्रेशर क्या करेगा? बढ़ेगा। और अगर पीक टेम्परेचर पीक प्रेशर बढ़ेगा तो डिले पीरियड डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इंजन की अगर आउटपुट बढ़ती है तो डिले पीरियड स्लाइटली हमारा क्या करता है? डिक्रीज करता है, मतलब नोकिंग टेंडेंसी हमारी क्या करती है? डिक्रीज करती है, ठीक है। आउटपुट बढ़ने से डिले पीरियड हमारा क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आते हैं क्वालिटी ऑफ फ्यूल पे। क्वालिटी ऑफ फ्यूल, क्वालिटी ऑफ फ्यूल का मतलब क्या है? देखो देखो पेट्रोल इंजन की जो क्वालिटी है, पेट्रोल फ्यूल की जो क्वालिटी हमें बताता है ऑक्टेन नंबर। डीजल फ्यूल की क्वालिटी हमें क्या बताता है? सीटेन नंबर, सीटेन नंबर, ठीक है। तो क्वालिटी ऑफ फ्यूल अगर अच्छी है, क्वालिटी ऑफ फ्यूल इज गुड, मतलब सीटेन नंबर क्या है? हाई है। सीटेन नंबर क्या है? हाई है। अगर सीटेन नंबर हाई है तो डिले पीरियड क्या होगा भाई? कम होगा। सीटेन नंबर इज हाई मतलब क्वालिटी इज गुड, फ्यूल क्वालिटी गुड है, सीटेन नंबर हाई है तो डिले पीरियड क्या होगा? कम होगा, नो की टेंडेंसी कम होगी। सीटेन नंबर लो है, डिले पीरियड हाई होगा, नो की टेंडेंसी हाई होगी, ओके। सो देखो सीटेन नंबर होता कितना, बच्चे नॉर्मली इसको भी आंसर कर देते हैं कि ऑक्टेन नंबर तो होता है, नॉर्मली जो हम पेट्रोल लेते हैं उसका ऑक्टेन नंबर इतना मिलता है हमें। मार्केट में जो हम ऑक्टेन नंबर लेते हैं ना, इस रेंज में हमें मिल जाता है ऑक्टेन नंबर। मार्केट में हमें ऑक्टेन नंबर इतना मिल जाता है। हालांकि कुछ कंट्रीज में तो ये 90-92 से कम मिलता ही नहीं है। कुछ कंट्रीज में तो ऐसा भी है कि 92 से कम मिलेगा नहीं आपको, बहुत अच्छा क्वालिटी का ऑक्टेन फ्यूल मिलेगा आपको पेट्रोल के लिए, ओके।
डीजल में जो आप यूज सिटेन नंबर होता है, ये 56 57 का ना बहुत अच्छा समझा जाता है। डीजल फ्यूल विच इज हैविंग सिटेन नंबर ऑफ दिस, डीजल फ्यूल का अगर सिटेन नंबर इतना है 56 से 57 तो बहुत अच्छा उसको समझा जाता है। तो आपको थोड़ा आइडिया ये लगाना कि डीजल के लिए सिटेन नंबर इज नॉट रिक्वायर्ड अप टू लाइक 90 और 80, इतना हाई सिटेन नंबर नहीं रिक्वायर्ड होता। अगर सिटेन नंबर 50 56 57 है और दैट इज कंसिडर्ड एज ए गुड डीजल फ्यूल, उसको अच्छा डीजल फ्यूल हम बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये डीजल का तो इतना मिल जाता है डीजल के लिए। अगर आप पेट्रोल का सिटी नंबर देखोगे ना, पेट्रोल का सिटी नंबर, तो पेट्रोल का सिटी नंबर तो बहुत कम होता है भाई। पेट्रोल का सिटी नंबर क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, और डीजल का ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है। डीजल फ्यूल का ऑक्टेन नंबर बहुत कम होता है, पेट्रोल का सिटी नंबर बहुत कम होता है। तभी करके हम इन फ्यूल्स को आप रिवर्स करके यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट यूज पेट्रोल फ्यूल इन डीजल इंजन और डीजल फ्यूल इन पेट्रोल इंजन। डीजल को आप पेट्रोल में नहीं यूज कर सकते और पेट्रोल को आप डीजल इंजन में यूज करते हैं, क्योंकि पेट्रोल को अगर डीजल में करोगे तो क्या हो जाएगी, नोकिंग हो जाएगी। बिकॉज पेट्रोल का क्या है, ऑक्टेन नंबर क्या है, हाई है, बट सिटी नंबर क्या है, बहुत लो है। तो डिले पीरियड तो बहुत लार्ज हो जाएगा। पेट्रोल का डिले पीरियड क्या हो जाएगा, बहुत लार्ज हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगी। एक्यूमुलेशन हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, एकदम रैपिड सीवियर प्रेशर राइज होगा, आपका क्या हो जाएगी, नोकिंग हो जाएगी। डीजल को इसमें यूज करोगे तो डीजल का क्या है, ऑक्टेन नंबर क्या है, बहुत कम है। डीजल का ऑक्टेन नंबर क्या है, बहुत कम है। तो उससे भी आपकी क्या होगी, अब नॉर्मल कंबशन हो जाएगी। ठीक है, इसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, कम है। पेट्रोल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। दोनों की में क्या होगी, क्या होगी, नोकिंग हो जाएगी। पेट्रोल में क्या होगी, इसमें आएगा तो एक्यूमुलेशन से नोकिंग हो जाएगी, ये इसमें आएगा तो ऑटो इग्निशन हो जाएगी। बिकॉज डीजल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या है, दैट इज लेस। ओके, सो कभी भी हम इनको रिवर्स करके ऐसे यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट आता है इनटेक टेम्परेचर एंड प्रेशर। Intake temperature and pressure, what is the meaning of intake temperature? Means the air which you are taking into the, you can say, suction में जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा है। अगर सक्शन में जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर ज्यादा है तो डिले पीरियड बढ़ेगा या घटेगा, कैन यू आंसर? अगर जो एयर आ रही है उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, तो डिले पीरियड क्या होगा, डिक्रीज करेगा। Why it will decrease? Because the air temperature is high, so initial easily fuel क्या होगा, it will be easily vaporize, easily mixing, उसकी mixing tendency, vaporization tendency क्या हो जाएगी, it will increase। तो vaporization और automation, automation तो चलो नोजल को करना है, you can say vaporization और mixing वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो डिले पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा if the intake temperature of the air is large। अगर प्रेशर लार्ज हो, प्रेशर से क्या मतलब, देखो प्रेशर लार्ज कब होगा, अब नॉर्मली एयर का प्रेशर कैन वी चेंज, वी कैन चेंज बाय सुपर चार्जिंग। सुपर चार्जिंग या टर्बो चार्जिंग करके हम प्रेशर चेंज कर सकते हैं। तो जब भी प्रेशर वो बोल रहा है ना, तो प्रेशर बोल दे या बोल दे क्या, कि टर्बो चार्जिंग या सुपर चार्जिंग, टर्बो चार्जिंग और सुपर चार्जिंग। ठीक है, डीजल इंजन पे नॉर्मली टर्बो चार्जिंग करते हैं, ठीक है, सुपर चार्जिंग। ठीक है, तो क्या होती है टर्बो चार्जिंग और सुपर चार्जिंग, क्या होती है, हम एयर को कंप्रेस करते हैं। वी विल कंप्रेस एयर बाय यूजिंग अ कंप्रेसर। एयर को हम क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, सो दैट उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी बढ़ जाए। जब एयर को कंप्रेस करते हैं तो उसकी डेंसिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ेगा, डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी क्या करेगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो डेंसिटी अगर बढ़ेगी, एयर की डेंसिटी बढ़ेगी तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या करेगी, आपकी इंक्रीज करेगी। ठीक है, तो जब डेंसिटी बढ़ती है ना एयर की, तो वहां पे आपका जब फ्यूल आप उस एयर पे इंजेक्ट करोगे तो उसका ऑटो इग्निशन टेम्परेचर विल डिक्रीज। ऑटो इग्निशन टेम्परेचर क्या करेगा, इंक्रीज डिक्रीज करेगा। तो प्रेशर और डेंसिटी एयर की बढ़ने से जो फ्यूल का ऑटो इग्निशन टेम्परेचर इट विल डिक्रीज। सो सुपर चार्जिंग से आपका ओवरऑल इफेक्ट क्या बनना है आपको, सुपर चार्जिंग से आपको ओवरऑल इफेक्ट क्या बनना है, डिले पीरियड क्या होना है आपका, कम होना है। डिले पीरियड क्या होना है, कम होना है। इसलिए आप सुपर चार्जिंग तो मस्ट है। डीजल इंजन में सुपर चार्जिंग आप करते ही करते हैं, पेट्रोल इंजन में सुपर चार्जिंग आप नहीं करते नॉर्मली। क्यों नहीं, क्योंकि सुपर चार्जिंग से वहां क्या होता है, नोकिंग टेंडेंसी इंक्रीज करती है। व्हाई, बिकॉज वहां पे क्या आता है आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर। तो अगर वहां पे आप सुपर चार्जिंग करोगे ऐसा इंजन में तो नोकिंग टेंडेंसी विल इंक्रीज। बट अगर यहाँ पे सुपर चार्जिंग करोगे या टर्बो चार्जिंग करोगे एनसीआ इंजन, द नोकिंग टेंडेंसी विल डिक्रीज। दैट्स व्हाई सुपर चार्जिंग इज मस्ट, टर्बो चार्जिंग इज मस्ट इन डीजल इंजन, ये हम करते ही करते हैं। ठीक है, अब एक चीज और समझो कि इनटेक टेम्परेचर अगर बढ़ने से डिले पीरियड बढ़ता है तो इसको बढ़ा दो यार। अगर इनटेक टेम्परेचर बढ़ाने से, इनटेक टेम्परेचर बढ़ाने से डिले पीरियड अगर बढ़ता है, घटता है, तो बढ़ा दो इसको, बढ़ा दो टेम्परेचर, बढ़ा दो उसको, एयर को पास कर दो एग्जॉस्ट गैस के पास से, बढ़ा दो इसको,
इसको घटा दो delay period को, but we cannot do that. Why? Because if you will increase this temperature beyond a certain limit, अगर एक certain limit से ज्यादा है, अगर हम ये टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखो जब टेम्परेचर बढ़ेगा एयर का तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी. हम तो सुपर चार्जिंग करके डेंसिटी बढ़ाना चाह रहे हैं और टेम्परेचर इंक्रीज करके डेंसिटी घटा रहे हैं, तो हमें कहां फायदा मिलेगा? तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी. तो एक लिमिट से ज्यादा आप टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकते. एक लिमिट से ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी. और क्या होगा जब वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी डिक्रीज करेगी तो मास ऑफ एयर प्रेजेंट दैट विल डिक्रीज. तो कंबशन क्या होगा? इनकम्प्लीट होना शुरू हो जाएगा. कंप्लीट कंबशन नहीं होगा बिकॉज फ्यूल विल नॉट गेट सफिशिएंट मास ऑफ एयर इन द कंबशन चैम्बर, सो इट विल नॉट इग्नाइट प्रॉपर्ली. तो कंप्लीट कंबशन होगा ही नहीं. सो ये एक लिमिट से ज्यादा हम नहीं करते. ठीक है, ये करते हैं प्रेशराइज हम करते हैं बाय सुपर चार्जिंग. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड रिलेटेड टू दी यू कैन से फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट डिले पीरियड. और यही वो फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करते हैं? दीज ऑल आर फैक्टर, यही वो फैक्टर हैं जो किसको अफेक्ट करेंगे हमारे? दीज आर द फैक्टर व्हिच अफेक्ट नोकिंग. ये किसको अफेक्ट करेंगे? हमारा नोकिंग को अफेक्ट करेंगे. ठीक है, अब आपको समझना क्या है कि पेट्रोल इंजन में आपने देखा कि पेट्रोल इंजन सीवियर प्रेशराइज कंपैरेटिवली ज्यादा मिलता है. व्हाई? बिकॉज द मिक्सचर इज होमोजीनियस. तो पेट्रोल इंजन में जो नोकिंग होती है ना उसको कई बार डेटोनेशन भी बोल देते हैं. नोकिंग जो पेट्रोल इंजन में होती है उसको डेटोनेशन भी बोल देते हैं. Why there is a separate name? Because the pressure rise is more, you can say, large as compared to the pressure rise in the diesel engine, because the mixture is homogeneous in petrol engine. तो petrol engine में जो नोकिंग होती है उसको कई बार डेटोनेशन बोल देते हैं. ओके, बट जनरली these टर्म्स आर इंटरचेंजेबल. इनको इंटरचेंजेबल है. आप नोकिंग इन पेट्रोल इंजन भी बोल सकते हो, नोकिंग तो दोनों के लिए यूज करते हो. दिस टर्म इज यूज फॉर बोथ. नोकिंग तो आप दोनों के लिए ही यूज करते हो. डेटोनेशन जो वर्ड है इट इज जनरली यूज फॉर पेट्रोल. जनरली इट इज यूज फॉर पेट्रोल इंजन. जनरली आप इसको किसके लिए यूज करते हैं? पेट्रोल या एसआई इंजन के लिए. बट दिस नोकिंग टर्म इज इंटरचेंजेबल. नोकिंग इन एसआई इंजन, नोकिंग इन सीआई इंजन. ओके, एंड व्हाट इज नोकिंग? नोकिंग इज द अब नॉर्मल कंबशन. ओके, और इसको भी आप ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं यूज करते, यू कैन यूज इट. ओके, बट जनरल इन जनरल दिस इज द रूल. पेट्रोल इंजन के लिए हम नोकिंग बोलते हैं अब नॉर्मल कंबशन को. दिस नोकिंग इज अब नॉर्मल कंबशन इन बोथ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन. Okay, so these are some of the factor friends we have discussed. This is all about today's class. Thank you very much. Thanks for watching. Have a nice day. Keep preparing.